Yes. So you're waiting for how many people now? So there were 2 to 3 people more. Somewhere they are out of the town. They told me to just send me the recording today. I think so. I'm not getting your voice. Another chart. Oh, okay. Let's start. Let's begin. So how many people are you like to join, sir? So there were 5 to 6 people were coming around, but three to four messaged me that they are not available. Just send me the recording after this class. So I'm just sending the Okay, recording, okay, and I'll put down this recording to okay. them. Uh, Give me just 1 minute, sir. I'm connecting to my internet. My internet, I lost my internet. एक okay, second, sir. okay, okay. We'll start. ये इंटरनेट को भी लगता है संडे को उसको भी छुट्टी चाहिए। हे प्रभु। अंडरस्टैंड करना है। मेरा नॉर्मल इंटरनेट निकल गया है, सो आई एम यूजिंग माय ओप्पो एंड कनेक्ट टू ओप्पो। Okay. एक सेकंड तो हो जाएगा, एक सेकंड। Are you using the Airtel आ fiber? गया सर। यस सर, एयरटेल फाइबर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सर? गुड? Very बैड? bad, very bad, very bad. हाँ, मुझे भी अगस्त 12 महीने का है। आई हैव टू चेंज इट आफ्टर दिस अगस्त। वेरी नहीं. फ्रस्ट्रेटिंग एक्चुअली, इतना तो है ना। यू नो, आपका जो मैसेजेस आता है ना लोगों Hmm. का, Hmm. मुझे डेस्कटॉप में बताता है लोड इन करके, एंड 7-10 मिनट्स और लोड होता है। इतना स्लो मेरा चैनल, Hmm. तो मुझे उसको चेंज करना ही है। No, यस रेडी सर। actually, yes, yes, yes. हाँ हाँ, So, बोलिए बोलिए सर, आई एम लिसनिंग टू यू। yeah. नहीं सी प्रॉब्लम आई स्विच टू द लोकल वन. मतलब मेरे यहाँ पे हाथवे अच्छा काम कर रहा है. देर इज नो लैग, नो ड्रॉप इन अ कनेक्शन. एंड इफ समथिंग हैपेंस इट रिबूट इट इन जस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर. आई एम यूजिंग द हाथवे. मैंने एयरटेल को छोड़ दिया है. मतलब आई वाज यूजिंग द हाथवे हाथवे. हाथवे का नंबर हाथवे वाले का नंबर रहेगा तो मुझे दे दीजिए। यस 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 यस. क्योंकि भारतीय एयरटेल इज वेरी पथेटिक. आई एम सॉरी टू से दिस बट इट्स रियली पथेटिक. जब काम इम्पोर्टेंट काम रहेगा ना, उसी दिन वो डाउन रहेगा वो. बराबर है सर, एकदम सही बोला। Lack of infrastructure and nothing else. They're just planning and they'll nothing do. Okay, chalo. Let's begin. इंक्रीज शायद पड़ेगा। Chalo. Let's begin. Let's यस begin. आई एम रेडी सर। Yeah. So once again, good afternoon to everyone. My name is Sanket Patange. Welcome to this forecasting session for 22nd Feb 2026. So we are on the chart of the Nifty. So let's begin with the Nifty broader index. I'm starting with the monthly time frame. So this session will be in a mixed language of Hindi, Marathi, and English.
So on a monthly time frame, as discussed last time also, last session also, कि most of the time people are not aware of the larger time frame or larger context with the trend that is coordinating with the smaller time frame also. So when the larger time frame is in Right. between the two things, like it is in this, it's stuck between the two levels of important measure and support that have been marked on the chart. You can see it clearly, and it has not been taken out or migrated, or it's not a violated also, and it is not closing above and below. So that's why I'm telling these people and these guys this session all the time, when we have this type of situation, mostly the market goes sideways. When we have the market is in between the support and resistance on the larger time frame or shorter time frame also, it creates a lots of whipsaws and everything. तो इसमें क्या होता है, इसमें एक आज सीखने को इसमें आप मैं बोलूंगा, and those people who are interested to join me in the Lonavala session on the 1st March 2026, यही मैं इसमें थोड़ा सा आपको मैं बताने वाला कि ये कैसा मैं देखता हूँ, how the market tells me how to be ahead little bit of everyone and how we can take the advantage of that. तो पहली बात, जब मार्केट ये विपसो करता है, इट इज इन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, नॉट शोइंग एनी क्लियर डायरेक्शन एंड द ट्रेंड, तो सिंपलिसिटी आप डेली चार्ट में जाके, आई एम स्विचिंग दिस डाउन टू द डेली चार्ट, मैं डेली चार्ट में स्विच कराऊं, अब कभी भी देखो आपको कंटिन्यूस ट्रेंड नहीं मिलेगा। साइडवेज में क्या होता है, वन डे अप वन डे डाउन, वन डे अप वन डे डाउन, यू कैन चेक इट। तो दिस इज अ साइडवेज पैटर्न। जब मार्केट 3 फरवरी से देखो क्या है, एक दिन नीचे गया, दूसरे दिन ऊपर आया, तीसरे दिन नीचे गया, फिर ऊपर आया, थोड़ा सा स्लाइड वेज चलते रहता है। तो साइडवेज में यही एक पैटर्न होता है कि मार्केट इज इन अ कंजक्शन, मार्केट इज इन अ साइडवेज और कंसोलिडेशन वी सेट, बट व्हाट हैपेंस, इट गोज अप एंड डाउन अप एंड डाउन, देयर इज नो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड और नो फॉलो थ्रू वी सेट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट टॉपिक आई एम शेयरिंग ओवर हियर, कि जब मार्केट साइडवेज होता है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे चलते रहता है, द कंटिन्यूएशन विल बी नॉट देयर। तो इसमें क्या होता है, 99% लोग एक गलती करते हैं, ट्रेड लेते हैं, उनको साइडवेज मालूम नहीं होता, फिर क्या होता है, वो ट्रेड कैरी करते हैं, प्रॉफिट दूसरे दिन आता नहीं है। जिस दिन प्रॉफिट मिल रहा था उस दिन वो बुक नहीं करते, फॉर ग्रीड के चक्कर के वजह से, उनको लगता है और गिरेगा और बढ़ेगा और मिलेगा, नहीं होता। देर इज अ पैटर्न, देर इज अ कंसेप्ट, देर इज अ थेरी बिहाइंड दैट, कि आपको कब कंटिन्यूएशन में मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। और मैं हमेशा, मैं ग्रुप में भी कहता हूँ, मेरे गाइडेंस में भी कहता हूँ, मैं क्लास में भी कहता हूँ, दैट don't be too greedy. If you miss the opportunity, you miss it for a while, but the new opportunity is being created for you also. You need to be very aware to take that opportunity also. ओके आप कभी भी देखो, अभी भी आरएसआई मुझे ऑन डेली चार्ट ऑल्सो एंड प्राइस पे भी मुझे बता रहा है कि ये साइडवेज है, एक लेवल पे बेटा है, एंड दिस इज होलसेल एंड रिटेल जोन, और आप यू कैन कॉल इट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन दैट हैज बीन मार्क, नीचे वाला सपोर्ट है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, एंड ड्यू टू दिस थिंग, due to this parameter, you can easily see market is going sideways, RSI is in between 60-40, this is a clear cut sign of sideways consolidation। मैं लास्ट जैसे ही थर्ड फिफ्थ का जब कैंडल क्रिएट हुआ था, मैं तभी से मैं सबको बता रहा हूँ कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में हो, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उतना फायदा लेना है, नहीं मिला आप लोगों को छोड़ देना है, बिकॉज मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन में 99% लॉसेस करवाता है, इट डजंट गिव द चांसेस टू मेक द मनी। Okay, while buying and selling side, if you're using some option strategies like iron condor, straddle triangles, iron butterfly, or a lizard, we can make the money, but yes, we need to be very aware while trading these things in the particular sessions। okay, तो इसमें ये हुआ, अभी तो ये साइडवेज है, एंड जस्ट गोइंग टू द मिडल टाइम फ्रेम वीकली, तो वीकली भी देखो कि ये साइडवेज है, तो दो टाइम फ्रेम अभी साइडवेज से, एक टाइम फ्रेम ऊपर की तरफ है, but overall market is in a sideways convection and there is no clear cut direction closing above or below the support resistance area। so most probably the Friday there was a news regarding the Trump and ट्रम्प के अगेंस्ट उधर के यूएस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ट्रम्प ने थोड़ा सा ये गलत किया है, बट उसके बाद भी अनाउंसमेंट होने के बाद निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी में और गिफ्ट निफ्टी में बहुत बड़ा एक बाउंस देखने को मिला। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि द न्यूज इज फॉर अ टिपिकल फॉर अ मोमेंट, वी नीड टू वेट फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे न्यूज बाहर आ गई कि ट्रम्प के खिलाफ वोट हो गया है, सब कुछ ट्रम्प के अगेंस्ट जा रहा है, तो ट्रम्प ने इमीडिएट आके बोल दिया कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड विद द यूएस कंट्री एंड ही इज वेरी अशेम्ड ऑफ द पीपल। तो मुझे और एक बताना था
कि कितना भी होने दो, मार्केट जब तक ये दोनों क्रॉस नहीं करेंगे तब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा आपको। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा यू नीड टू बी वेरी अवेयर कि जैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है यू नीड टू ग्रैब इट। आपने अगर मिस किया तो यू आर गोइंग टू मिस इट फॉर एवर, बिकॉज साइडवेज कंडीशंस में ट्रेंड इज नॉट इन योर हैंड। तो वही मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। So overall, again in the weekly and daily, again the sideways, monthly is a sideways. So 3 times are going sideways. So that's the big conviction. We need to wait a strong close above at 26,300 and strong close below at 24,300 के नीचे for a short side and a upside. So right now in between this, जहाँ पे भी ट्रेड्स मिलते हैं हम immediately लेते हैं, immediately exit कर देते हैं. We don't wait and watch for what is happening. Okay, now switching down to the bank nifty from nifty. Let's see what is the bank nifty on a larger time frame. सो ओनली द स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स मैनिपुलेशन होता है या इंडेक्स मैनेज होते हैं तो वो एक आईटी एंड बैंक निफ्टी के इसमें हो रहा है। द आईटी सेक्टर इज गेटिंग हैमर्ड टू द डाउन साइड, बैंक निफ्टी इज हैमर्ड टू द ऑल टाइम हाइज। So this is the key major thing. So that's why the index is going the sideways. So this is again a second reason I'm explaining over here कि जब मार्केट साइडवेज जाता है तो उसके दो रीजन होने चाहिए। एक तो प्राइस एक्शन तो समझती है बट उसको मैनेज करने वाले दो इंडेक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में दे। So bank nifty is taking to lead to the upside and nifty IT is taking the lead to the downside. We can check in upcoming session or upcoming time. So on a monthly time frame, it's a good uptrend. It's making all time highs. बैंक निफ्टी इज मूविंग अप। अपना जो सपोर्ट है 54,600 के आसपास मैंने जो मार्क करके रखा है यहाँ पे विद द मूविंग एवरेज सपोर्ट यहाँ पे भी आता है on a monthly time frame, and the RSI is still going up and it is in a super bullish mode and it still continues to go up. So we are coming down to one time frame below from monthly to the weekly chart. Now in a weekly we can see we have not crossed the previous this candle resistance on a daily and weekly also, and this is a sign that market is playing in between again support and resistance. So आप कभी भी देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब साइडवेज होता है एक दिन नीचे एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, द कंटिन्यूशन इज नॉट हैपनिंग। तो हम कंटिन्यूशन को नहीं बोल सकते, उसको हम फॉलो थ्रू नहीं बोलते कि कंटिन्यूस बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल लगे तीन ग्रीन कैंडल है या तीन बेरिश कैंडल लगे, वो होता नहीं है। तो यू विल गेट मिक्स टाइप्स ऑफ सिग्नल। तो बुलिश इंगल्फिंग कभी मिलेगा, बेरिश इंगल्फिंग मिलेगा। तो वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग द दिस थिंग्स। तो ये साइडवेज में दिस पैटर्न विल डज नॉट वर्क। Okay, so I'm switching down to the weekly time frame to the daily. So एक सपोर्ट जो वीकली पे बन रहा है इट्स नियर अमाउंट अबाउट 58,300 के आसपास एक यहाँ पे टेम्पररी सपोर्ट है। ओके, लास्ट टाइम ये सपोर्ट से ही यहाँ पे उड़ के चला गया है बैंक निफ्टी। द नेक्स्ट सपोर्ट एरिया इज अराउंड अबाउट द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आई मीन टू से इट इज अराउंड अबाउट 56,500 के आसपास है एंड 55,800 के आसपास ये जोन है, एंड उसके नीचे और एक जोन सेमली मार्क हो रहा है। दिस इज द मेन एरिया, मेजर एरिया 55,000 जो मंथली के इसके साथ कोलाइन हो जाता है। So right now we have getting the divergence on the RSI on a weekly chart also, so that is indicating that we maybe have a strong uptrend but the momentum we are going to lack because the divergence is nothing but it's a detox. It's always tell us that the sign, it's a conditions कि market will go up but it will not show the strength to the upside। मतलब जो आपको strength चाहिए, जो एक्चुअली दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। So these things are happening and this is why we are particularly getting a coincide with these things. So we are going to change from the weekly to daily. So now we can easily see कि देखो आप हम और clarity में जा रहे हैं। When we change the time frames, we can see this was a 3rd Feb resistance area. Okay, it is not trying to close above this area and this is a support area I'm marked. So 60,133 59,640 के आसपास एक सपोर्ट है। देखो यहाँ पे प्राइस आता है बाउंस आता है, यहाँ पे प्राइस आता है शॉर्ट हो जाता है। तो साइडवेज में क्या होता है, हमेशा मैंने वही बोला है, मैं कंटिन्यूसली वही बता रहा हूँ सेशन से चालू होने से पहले भी कि जब साइडवेज सिचुएशन होता है एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। अभी यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग हो गया तो इसका मतलब कंटिन्यूशन नीचे आना चाहिए था, बराबर, राइट, इजीली दैट प्राइस शुड गो डाउन। व्हाई डिड द प्राइस हैड गॉन अप? व्हाई डिड द दिस पैटर्न फेल देन? द बेरिश एंगल्फिंग फेल क्यों हुआ? So this is the thing. See, when this will happen and when this will work, we need to have the clarity on this. And 99 people will not have this clarity. They will just randomly look for the candlesticks pattern, moving averages, support, resistance, but they don't think or they don't give a chance कि अगर someone is going to manipulate the market, why is going to manipulate the market?
जो वो बड़ा बंदा जब तक मैनिपुलेट नहीं करेगा उसका पैसा नहीं बनेगा, जब तक आप ट्रैप नहीं होगे तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा, एज सिंपल एज दैट। बट उसको ट्रैप करने के लिए वो क्या करेगा, दे विल मेक द पैटर्न दैट हैज बीन यू हैव बीन टॉट। आपको बेरिश एंगल्फिंग सिखाया गया, आप बेरिश एंगल्फिंग को देख के शॉर्ट करोगे, क्या हुआ, इमीडिएटली मार्केट टर्न टू द another direction or opposite direction of your trades. So this is why we get trapped and people are not able to make the money. And we are so confident that when we give our trades, we are very perfectly, very precise giving the regarding the levels and everything. मैं जब भी मैं ग्रुप में आपको डालता हूँ कि दिस इज अबाउट द एजुकेशन, दिस इज अबाउट द थिंग, कि आपको वो देखना चाहिए कि मैंने वहां पे एक लेवल मेंशन किया होता था, मैंने लास्ट टाइम से एक लेवल मेंशन कर रहा था ऑन द निफ्टी, गो एंड चेक दैट निफ्टी कॉल द पुट व्हाट आई वाज गिविंग ऑन द थिंग to guide you about how these levels are working with this market and in the timing how to be taken the precious thing with that. आप कभी भी देखो, जब मैं वो 25,900 का पुट में दे रहा था, उसके ऊपर एक लेवल था कि निफ्टी का एक रेजिस्टेंस जोन है, शायद से यहाँ पे रेजिस्ट करेगा मार्केट और यहाँ से नीचे घूमने की 99% चांसेस है। तो वो घुमा है नहीं, वी कैन चेक इट आउट विन अपकमिंग टाइम, जस्ट विल लेट द सी कि हाउ द मार्केट इज गोइंग टू गो रिएक्ट। नाउ अगेन द मार्केट इज इन अ साइडवेज फेज फॉर द बैंक निफ्टी आल्सो। तो जब तक ये 61,800 के ऊपर क्लोज नहीं होता स्ट्रांगली, अप ट्रेंड नहीं है, और डाउन ट्रेंड 60,000 मोरली, ये कैंडल के नीचे 59,800 के नीचे क्लोज नहीं होता, तो ये डाउन ट्रेंड नहीं चालू होगा। So this is the thing, the market is going sideways. Again, we can see the RSI is not in a bullish mode. Again, we can see the market is moving up and we are seeing this diversion. See, when we are getting the diversion, we can see the small candles are popping in. मतलब ये सिंपल क्लियरिटी देता है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, पर आपको जो स्पीड चाहिए, जो आपको पॉइंट चाहिए, वो आपको देगा नहीं मार्केट, बिकॉज व्हेन दिस टू थिंग्स गेट डाइवर्टेड, कि प्राइस इज गोइंग इन द अनदर साइड and the RSI is going in the another side, then it's a clear direction that we are going to lose the momentum or the speed that we are going to derive from the market. तो वो ही चीज गलती होता है, वो समझने में गलती हो जाता है, and people are not able to understand how these things are working in the market, and that's why people are not able to make from the money from the stock market. अगर हम गाड़ी जब चलाते हैं हाईवेज पे, जब हमारा रास्ता क्लियर होगा, देर इज नो ट्रैफिक इन फ्रंट ऑफ विंडो, और हमारे आगे कुछ नहीं होगा, तो हमारा स्पीड 120 के ऊपर भी जा सकता है ऑन एक्सप्रेस वे। बट वेन देर इज अ ट्रैफिक कंजेक्शन होता है, तो कैन वी ड्राइव द कार at a higher speed? Exactly, it is a no answer. The same thing applies for this market. Correct. And this is your speedometer, this is your traffic. We can get a judgment and we can analyze this indication in array ahead signals only. Okay, so bank nifty right now is giving a signal that it is on sideways mode on a daily chart. So we need to wait for this level to get breakdown or break in, so we can decide the next trade to be taken over here. So shifting towards the nifty 500 stock, ये सबसे बड़ा एक ब्रॉडर इंडेक्स है निफ्टी के साथ साथ। So we'll start with the monthly. Okay. So we can easily and clearly see that कि जो लास्ट जो अपना स्विंग हाई बना था और रेजिस्टेंस बना था, वो ब्रेक ही नहीं कर पाया 500 में। जैसे निफ्टी ने नहीं किया, तो 500 भी नहीं कर पा रहा है। So this is a simple sign of indication that big players are not interested. जब तक ये ऊपर की तरफ अप ट्रेंड होना चाहिए, तो इसके ऊपर बंद होना बहुत जरूरी है 25,000 के आसपास। So this is a thing that we are missing over here, and we are able to see how we can take the advantages. So 100 का थोड़ा सा यहाँ पे एक support है, this is a tested support now, and this is the resistance. So we can continuously see that Nifty 500, oh sorry, Nifty 500 is continuously taking the resistance at this area. So how the stock is going to be go ahead, मतलब stock भी कैसे बढ़ेंगे, तो उसमें से simplicity RSI भी 60-40 बता रहा है, in the range of 60-40. It is a sideways concept. It is same like a nifty. Nifty flat है तो Nifty 500 भी उसके साथ साथ flat है. There is nothing new signs coming in. And आप ये same pattern देखोगे सभी इसमें, bearish engulfing बना and the pattern got filled over here. Okay. Again, yes, we can see the RS on the daily chart is again a sideways. So इसमें trend भी ना के बराबर है. So we need to wait and watch. When the trend is getting clear, then we can ride the market with easiness. So Nifty Auto. Yes, sir. So yeah, so we are on a Nifty Auto. We can see clearly that it has broken the previous high that was created. The swing high was created, it is broken, it has closed up and it has come down, it has taken the support, it is showing the strength. So
जीएसटी के न्यूज आने के बाद जो अगस्त जुलाई में थोड़ा सा जो वेव मिला था उसका थोड़ा सा करेक्शन हुआ, वापस ये थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास बैठा है। ऑन अ वीकली चार्ट इट इज ट्राइंग टू गेट द रेजिस्टेंस एज वेल एज द आरएसआई ऑन अ 60 level on the weekly time frame is showing some resistance. Key area over is taking place. In case we can see the weaknesses coming in the auto sector upcoming time. So शायद से जो ऑटो के वीक सेक्टर है या वीक स्टॉक है, शायद से वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज द support is downside to the net near to the 26,600 के आसपास पहला सपोर्ट है, एंड द फ्रेश सपोर्ट इज अराउंड अबाउट 25,500 के आसपास, एंड दिस इज ऑल द सपोर्ट द फ्रेश टू द डाउन साइड। तो 24,000 मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। यहाँ पे चांसेस है, बिकॉज यहाँ पे एक सिग्नलिंग कर रहा है कि ऑटो सेक्टर में शायद से सेलिंग प्रेशर आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में देख सकते हैं। But when we will get activated for the auto sector, until unless we don't get the close or trade below 27,472, मतलब सिंपल 27,400 एंड 450 के नीचे जाता नहीं है, तब तक हमें, I'm just putting down my alert, 27, what was the low? 479, 479, 7, 450. Yeah. So if I don't get the alert, I will not be alert. So alert सब लोगों को हमेशा alert रखते हैं मार्केट के लिए, because we are easy to see these things very clearly. On the daily chart, it is Yes, sir. showing a sideways move and it has shifted this trend to the upside. आप देखो ये बुलिश टेरिटरी जोन में चल रहा था, अभी भी ट्रेंड ऊपर की तरफ था, ट्रेंड ब्रेक हो गया नीचे की तरफ, इट has taken the resistance. So this is a sign that ऑटो सेक्टर में शायद से थोड़ा सा की रिवर्सल फैक्टर शॉर्ट टर्म के लिए देखना मिलेगा, and it is taken and changed the trend in RSI as well as price. So we can see a selling pressure. So keep an eye on upcoming week, this week or next week, for the short selling opportunities in auto sector right now. जैसे मैंने आपको वो जो लेवल दिया 24,000 27,000 सॉरी 27,450 के नीचे जाता है ऑटो सेक्टर, तो उसमें आपको वीकनेस, ऑटो सेक्टर के स्टॉक जो वीक है आपको शॉर्टिंग के लिए उसमें दिखाई देंगे। सो अपकमिंग टाइम में ऑटो सेक्टर इज अ वीक thing we can see. Nifty Bank and Nifty Financial Services are one and the same thing, but we can check the chart in a clarity manner. So financial services are also making all-time highs. ये बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरह ऊपर, सॉरी बैंक निफ्टी की तरह ऊपर ही जा रहा है, it is showing some strength, and this is why we can see some insurance company sectors and financial services industries are booming into this. So overall monthly trend is up, weekly trend is also a little bit good, it is trading above the previous high but not able to get the close above the previous highs and or the previous candle close. That's a being some point of thing. And यहाँ पे resistance क्यों दिखाई दे रहा है? Because RSI is continuously getting a divergent and divergent to divergent side. तो majorly 60 के आसपास डाइवर्जन मिल रहा है, रेजिस्ट भी 60 के आसपास कर रहा है, तो ट्रेंड शायद से इसका भी वीक होगा, तो शायद से करेक्शन आता है आने वाले समय में। So it's a very good कि FIs are not willing to buy at a higher prices, they wanted to buy at a lower price, cheap price. So that's why the market is getting discounted, and that's a good sign कि आने वाले समय में डिस्काउंट होता है तो रिवर्सल और पुल बैक बहुत हेवी होने वाला है ऊपर की तरफ। So that's a clear indication sign we're getting from this financial sectors and services, as well as we can see the bearish engulfing हुआ, again the same thing, same pattern is repeated in every condition, every sector, and we are getting trapped. So we can see clearly that RSI is not able to cross 60, 65 above, and it is taking a resistance at a higher level, and this is again a sign that we may see a fall coming in a bank nifty 50, क्योंकि sectors indices are getting a weak, so that's why the selling pressure may see in a continuous way, and we can take the advantage in a short selling side. So there are lots of particular stock we need to go, but it is not a right time to go. जाएंगे तो उसमें 5-6 घंटे निकल जाएंगे आपने, तो यही प्रॉब्लम है। आने वाले समय में देखते हैं कि we will update this thing into a group itself. द सबसे वीकेस्ट सेक्टर खराब जो चल रहा है, मतलब जब मार्केट खराब होता है तो डिफेंसिव सेक्टर को पहले प्रेफरेंस देते हैं। एफएमसीजी इज नथिंग बट द डिफेंसिव सेक्टर लाइक अ फार्मा एंड एफएमसीजी। तो ओवरऑल ये मंथली ट्रेंड पे ऑलरेडी वीक है। सो इफ आई सी दिस इज अ मंथली टाइम फ्रेम एंड इज ट्रेडिंग नियर द सपोर्ट, इट हैज नॉट क्लोज बिलो दिस सपोर्ट आल्सो, so it is holding this support for a while, not as on a permanent basis. ओवरऑल रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे साइडवेज गया, यहाँ से ड्रॉप हुआ, आरआई से भी हमको बता रहे कि ये कुछ करने वाला नहीं है, मतलब इसमें कोई मूव आने वाले नहीं पड़े।
सो आईटीसी स्टॉक है, एफएमसीजी में नेस्ले इंडिया है, ब्रिटानिया है, कोलपाल है, तो दे आर गेटिंग हैमर्ड बिकॉज ऑफ दिस सेक्टर ओनली। इसमें जान नहीं तो वो सेक्टर में जान नहीं होगी। ओनली इसमें एक स्टॉक पॉजिटिव है, दैट्स टाटा कंज्यूमर। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग बिहाइंड दैट, कि हु इज चेजिंग दैट स्टॉक, बट ऑल टाइम हाई पे है। आई एम नॉट रेडी टू गो एंड इन्वेस्ट इन टाटा कंज्यूमर राइट नाउ बिकॉज इट इज ओनली द वन स्टॉक इन एफएमसीजी सेक्टर showing this trend right now. Otherwise the FMCG sector is very lagging and behind the Nifty। मतलब आप कंपेयर करोगे, if you compare the Nifty absolute return for the last 2 years with the FMCG, ये ऑलरेडी नेगेटिव उसके साथ है। मतलब निफ्टी अगर 10% चल रहा है तो ये -20% चल रहा है। तो ये डिफरेंस आ रहा है। तो डिफेंसिव जो स्टॉक्स होते हैं लाइक एफएमसीजी स्टॉक होते हैं, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेस्ले इंडिया, आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, ये सब स्टॉक लैगिंग है एंड दैट्स व्हाई एफएमसीजी में कोई ही बाइंग पोजीशन एफआईस और बड़े प्लेयर्स नहीं बना रहे अभी तक। सो लेट्स डाइव इनटू द वीकली। तो वीकली एक रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है। सो दिस इज अ रेजिस्टेंस अपकमिंग थिंग। ये एक सपोर्ट के अंदर एक रेजिस्टेंस है वीकली का। It has taken that resistance, come down again, it has tested that. So I think so the price is trying to not to move above 40 because ये बहुत super bearish territory में है weekly time frame पे। And when this is a very super bearish territory, so this is a very bad sign that कि शायद से आने वाले समय में आईटी से मतलब एफएमसीजी के सेक्टर वाले स्टॉक और हैमर किए रह जाएंगे। तो दिस सेक्टर इज अगेन वीक। तो लेट्स डाइव इनटू द डेली चार्ट्स। द सेम resistance is getting hammer, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। it is taking not taking out the strong close to the outside, so the trend is weak। mostly we can see the short selling coming in FMCG sector also, so this sector is weak। निफ्टी आईटो तो बोल ही नहीं सकते, जो हम लास्ट 2 to 3 वीक्स हम बोल रहे हैं, गाइड कर रहे हैं सबको। मंथली टाइम फ्रेम मैंने लास्ट टाइम बोला था 39,610 is the biggest resistance। this is it has not crossed or it has not closed above this area, so that's why the trend was not impacted to the upside। and we can see what is the big changes are happening nifty align, if I'm aligning the current price with the RSI, it is showing me it is currently in a sideways trend। mostly it is coming to the downside support over here that have been already marked, and I have been already telling the people that this sector is very weak। and मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे ये इंडेक्स मैनेज होते हैं, मतलब क्या होते हैं, आईटी सेक्टर नीचे लेके आ रहा है मार्केट को एंड निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स को ऊपर उठा रहा है। तो ये दोनों सेक्टर जब अलाइंड हो गए एक साथ, मतलब आईटी सेक्टर भी नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है, तो हमको कंटिन्यूस ट्रेंड दिखाई देगा, कंटिन्यूस अपने को कंटिन्यूशन मिलेगा निफ्टी के इसमें। बट ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं, तो एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ये सेक्टर्स के वजह से हो रहा है। तो आईटी इज पुलिंग द लेग्स डाउन एंड बैंक निफ्टी इज पुलिंग द लेग अप टू द अपसाइड। So this is due to this tug of war, all the people are getting trapped, and this is why in a sideways condition we need to have this clear idea how to use this methodology to trade and make up capital into profitable sequences। Yes, sir. Yeah, so on a weekly basis, so we can easily see ki the nifty 50 the Nifty IT index has taken the resistance near the 60 and it has turned down. It has not able to cross the monthlies and resistance of the weekly also. And we have seen the sharpest falling. The IT stock is going to come down। I don't know, maybe it may be continue to go down with the Nifty again। तो शायद से ये भी निकल के शायद से ये फ्रेश एरिया ऑफ सपोर्ट आता है यहाँ पे। तो 22,600 के आसपास फ्रेश सपोर्ट है। एक यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, बट इनकेस ये बहुत सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर चुका है, तो इनकेस आईटी स्टॉक को शेकआउट करना है और उसके नीचे लेके जाना है, तो शायद से ये एरिया भी तोड़ के नीचे लेके गए, तो दिस इज अ फ्रेश एरिया टू गो लॉन्ग। 22,700 के आसपास, 600 के आसपास, अभी 32,000 है। तो लगभग 8,000 पॉइंट का ड्रॉप भी आता है। तो डोंट गेट पैनिक, बिकॉज ये पैनिक जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक आईटी सेक्टर में नेक्स्ट बिग बाइंग बूम नहीं देखने को मिलेगा। सो डोंट गेट पैनिक इफ द आईटी सेक्टर इज गोइंग टू गेट हैमर्ड इन अपकमिंग टाइम आल्सो और अपकमिंग वीक। सो आईटी का क्लियरिटी मिल गया। सो निफ्टी मीडिया, so Nifty Media from Corona we don't have any strong trend, sideways जा रहा है। again we are taking the support over here, एक pivot support ले रहा है यहाँ पे,
बट ओवरऑल द मंथली टाइम फ्रेम RSI इज शोइंग द वीकनेस, मतलब ये इसमें अभी भी कुछ डेवलप ही नहीं है और ये अंडर परफॉर्म सेक्टर है 5-6 सालों से। ये नहीं हो पा रहा है जब तक आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ट्रेंड चेंजेस होता है या इसमें थोड़ा सा बल्क बाइंग होता है, तो जी टीवी, सन टीवी, जो टीवी नेटवर्क 18 वाला जो स्टॉक्स है, जो तब तक चलेंगे नहीं। सो ओवरऑल ये सेक्टर अंडर वैल्यूड है, अंडर परफॉर्म है, तो इसमें ज्यादा डीप डाइव की जरूरत नहीं है। So another strong sector for the Nifty is the Nifty metals. We can see the clearly difference between the charts. Nifty metals देखो ऑल टाइम हाई की तरफ कंटिन्यूस हाई मार रहा है, बट फ्रॉम लास्ट फ्यू सेशंस आई एम टेलिंग दिस दैट वी नीड टू वेट फॉर द कूल ऑफ इन मेटल सेक्टर ऑल्सो। तो मेटल सेक्टर जैसे नीचे ड्रॉप होगा, वी आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी गो लॉन्ग इन दिस सेक्टर। सो आप करंटली देख सकते हो वीकली एंड डेली पे, तो यहाँ पे थोड़ा रजिस्ट कर रहा है एक ऑल टाइम हाई के आसपास, एंड विद द RSI continuously showing strength, but price and RSI is not, I think ये मिसमैच हो रहा है डेली चार्ट पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ऊपर जा रहा था, RSI नीचे नीचे आ रहा है। सो दिस इज अ क्लियर कट साइन एंड इंडिकेशन दैट ये साइडवेज है। अगर ये नीचे जाता है तो आई थिंक सो वी नीड टू वेट फॉर 11,710 फॉर द प्राइस क्लोज टू द डाउन साइड। तो मतलब इसमें भी 11,750, सॉरी 11,713, ओके। तो 11,710 के आसपास मैं ऐड कर रहा हूँ उसको। सो दिस इज एरिया, दिस इज अ पॉइंट दैट इफ इट ब्रेक्स तो मेटल सेक्टर में भी बहुत बड़ी वीक वाली आ सकती है। और बाइंग अगर मुझे देखना है तो ये 12,314 के ऊपर या 315 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइस के ऊपर। तो तब जाके हमको एक ग्रीन सिग्नल, एक बुलिश सिग्नल वापस से ये सेक्टर में दिखाई देगा। फिर जैसे कि हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक है, तो वो एक सेक्टर फोकस में रह सकता है। सो राइट नाउ ये साइडवेज है, आई थिंक सो इसको थोड़ा सा अप्स एंड डाउन में आने दो, फिर बाकी पता चलेगा। निफ्टी मिड कैप में देखते हैं कि क्या है। तो आई थिंक सो फ्रॉम द मंथली प्रोस्पेक्टस टाइम फ्रेम, ये देखो लास्ट टाइम से ये रेजिस्टेंस मैंने मार्क करके रखा है, वो निकला नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में है सेम लाइक एन निफ्टी चार्ट्स एंड निफ्टी 500 के जैसा ही यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है प्राइस। मे बी वी कैन सी नेक्स्ट, मुझे मुझे तो प्रॉब्ली लग रहा है कि मार्केट में आने वाले टाइम पे शॉर्ट सेलिंग का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, एंड दिस इज अ स्प्रेड जोन। तो शायद से निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट वीकनेस आ रहा है एंड मार्केट में गेट इन अ वेरी बिग ट्रबल। सो शायद से निफ्टी अगर ये सेक्टर्स अगर सब नीचे आते हैं, आई थिंक सो निफ्टी कैन गो डाउन टिल 22,000 टू 23,300 के आसपास आ सकता है, जो मैं ऑलरेडी पहले से बता रहा हूँ। हाँ, बट निफ्टी नीड टू ब्रेक 24,500 टू द डाउन साइड इनिशियली, उसके बाद ही ये बड़ा वीक फॉल देखने को मिलेगा। बट आने वाले समय में ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट वीकनेस है, तो थोड़ा नीचे जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो अभी न्यूज क्या आने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव आई डोंट नो, बिकॉज जो चार्ट मुझे बताते हैं मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। सो ओवरऑल सेम चार्ट है जो 500 के मैंने जैसे डिस्क्राइब किया था, वो सेम है एंड इट्स नॉट बिग थिंग। तो ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा मुझे लास्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा था, the companies like oil and gas like Reliance, ONGC, BPCL. So let's start with the monthly time frame. It has taken the support over here but not taken out any higher highs, higher lows नहीं है, ट्रेंड फॉर्मेशन नहीं, साइडवेज है वापस से। So RSI is also below the 60 area on the monthly chart. That's why the trend is lagging again over here. So that's a big concern कि इसमें ब्रेकआउट जब तक आएगा नहीं तो तब जाके ऑयल एंड गैस में इसमें ब्रेकआउट नहीं आएंगे। बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस पे आके रुका है। तो अगेन द सेम थिंग, वीकली वी हैव द रेजिस्टेंस, सो दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट वीकनेस है रेजिस्टेंस से। अब जितने भी सेक्टर देखो जो मैं देख रहा हूँ, सभी रेजिस्टेंस के एरिया में आके रुके हैं, and the price is not able to cross on a weekly also 60 with the price and the RSI is not matching. We have been getting a divergence, that's why we got a sell off to the support zone से एक रैली भी देखने को मिला। बट ओवरऑल मुझे तो लग रहा है कि मोस्टली सेलिंग ज्यादा की तरफ, मतलब जो प्रेडिक्शन है जो अप ट्रेंड की तरफ, मुझे थोड़ा सा 60% जो लग रहा था कि अप ट्रेंड है, बट अभी नहीं, तो 60% अभी डाउन ट्रेंड लग रहा है, 40% अप ट्रेंड लग रहा है। बट ओवरऑल सेक्टर्स वीक होने के कारण मुझे क्लियरिटी मिल रही है कि द मार्केट इज ट्राइंग टू गो डाउन। ओके, सो
ऑयल एंड गैस में अभी भी कुछ ऑन अ डेली बेसिस पे नहीं है। हाँ, इन केस वी ब्रोक दिस एरिया ऑफ सपोर्ट राइट नाउ जो बैठा है 11,000, हम्म, व्हाट वाज द लो, 932, 930। जैसे ये लो टूटेगा, आई थिंक सो वी कैन सी दैट सेलिंग प्रेशर इज क्रिएटिंग इन ऑयल एंड गैस, निफ्टी फार्मा। जैसे ये डिफेंसिव सेक्टर की तरफ देखे जाते हैं, मोस्ट प्रोबब्ली व्हेन द मार्केट इज गेटिंग क्रैश और पैनिक, ये मोस्टली सपोर्ट सेक्टर, सपोर्ट की तरफ देखे जाते हैं। बट लास्ट टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम पे इसका ये रेजिस्टेंस एरिया में ही प्ले आउट कर रहा है। इट इज नॉट ट्राइंग टू क्लोज आउट अबाउट दिस एरिया और बिलो दिस एरिया ऑल्सो। तो जैसे निफ्टी के हुआ था कि रेजिस्टेंस है ऊपर, नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट लेके बैठा है ऊपर, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है, एंड इन बिटवीन ये चल रहा है। तो इन बिटवीन मतलब ये ऊपर अभी रेजिस्टेंस की तरफ आ चुका है, तो निफ्टी फार्मा में भी शायद से सेलिंग आने वाले समय में दिख जाएगा। एंड वी कैन क्लियरली सी दिस वाज अ क्लियर कट साइडवेज ट्रेंड। देखो, जैसे अप्रैल 20 अप्रैल 25 से 11 अप्रैल 25 से अभी तक इसमें साइडवेज मोमेंटम इंटैक्ट है, ट्रेंड ही गायब है इसमें। सो जो भी फार्मा सेक्टर में लेके स्टॉक बैठे हैं उसमें से दो तीन स्टॉक ही चले हैं, बट ओवरऑल वी कैन सी व्हेन द सेक्टर इज गोइंग साइडवेज द स्टॉक्स आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म। तो सिंपल सिंपल है कि द बिग प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक दिस ऑफ, एंड इट हैज कम बैक अगेन टू द रेजिस्टेंस। मे बी आने वाले समय में ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, वी कैन सी अ बिग फॉल इन अपकमिंग time in pharma sector also. So majorly we need to be very very aware. प्राइवेट बैंक्स आर लाइक, जो मैं हमेशा बोल रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह ही चल रहा है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ये देखो, इट इज ये लास्ट टाइम के लेवल्स जो मैंने निकल के रखे उसी लेवल्स के अंदर वो ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज अ कंफर्मेशन एंड दिस इज अ साइन दैट दिस अ वीकनेस। अभी ये मेजर प्राइवेट बैंक्स कब वीक हो जाएंगे, ये अभी 28,564 के नीचे जब ब्रेक डाउन हो जाएगा प्राइवेट बैंक का, क्योंकि ये देखो आरएसए कंटिन्यू 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड इट इज शोइंग द वीकनेस एट ऑल टाइम है। सो ये देखो कितना बड़ा सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि आरएसए कितना आपको अर्ली सिग्नल्स दे रहा है कि मार्केट वीकनेस आ रहा है, शॉर्ट सेलिंग प्रेशर बन रहा है। और ये अभी आने वाले समय में आप देखोगे खुद, और तब जाके आपको मैजिक रिवील होगा। उसके पहले थोड़ा सा तपस्या करना पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको सीक्रेट का और उसका मजा आप ले पाओगे। तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव बीन सीइंग दिस। तो मेजरली प्राइवेट बैंक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी सब एक ही है। पीएससी सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर में लास्ट टाइम से देख रहा हूँ कि जैसे कोल इंडिया एनटीपीसी एक सेक्टर है, बट ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये देखो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चल रहा है बट ओवरऑल रेजिस्टेंस के एरिया में है। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है बट ट्राइंग टू नॉट क्लोज इट, बिकॉज ये मंथली क्लोज अभी तक नहीं होने वाला है। आरएसआई ने 60 के ऊपर एक मुंह निकाला है बट कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज इसको थोड़ा कंफर्म होने दो। 60 के आसपास, 60 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टिंग जोन रहता है, बट विद द अलाइनिंग विद द प्राइस एंड आरएसआई तो कंफर्मेशन मिलेगा। वीकली भी हम देखते हैं, देखो वीकली का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला, अगेन सेकंड कैंडल प्रेशराइज मिला, अगेन थर्ड कैंडल एक पॉजिटिव मिला है। सो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम ये देखो ये कंटिन्यूस साइडवेज है, ये ट्राइंग टू ब्रेकआउट कर रहा है। मतलब आने वाले समय में कोल इंडिया, एनटीपीसी, बीईएल, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है या पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उसमें शायद से बाइंग दिख रही है, बट ओवरऑल रेजिस्टेंस जोन के आसपास होने की वजह से एंड ओवरऑल निफ्टी इज नॉट इन अ पॉजिटिव मोड, सो ये स्टॉक फिलहाल के लिए मैं तो बाइंग के लिए अवॉइड करूंगा। इनकेस इफ दिस सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग अगेन जा रहा है निफ्टी इंडेक्स के अलावा, मतलब ये निफ्टी को डाइवर्शन में जा रहा है कि निफ्टी नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो शायद से इसमें भी आने वाले समय में सेलिंग भी आ सकता है और इसमें बाइंग भी आ सकता है। बट बाइंग के लिए आई नीड टू गेट अ क्लियर कट क्लोज अबाउट 10,413। ओके, एंड जो स्टॉक मैंने जो आपसे बात किया है उसके ऊपर ध्यान रखना, आने वाले समय में ये सेक्टर परफॉर्म करेगा। सबसे बेस्ट एंड परफॉर्म करने वाला सेक्टर इज द निफ्टी पीएसयू बैंक्स। सो निफ्टी पीएसयू में क्या है कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूस रैली हो रहा है, वी कैन सी ए कंटिन्यूस रैली ऑन मंथली टाइम फ्रेम, बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। और यही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जो निफ्टी को और बैंक निफ्टी को अलग दिशा में लेके जा रहा है। तो ओनली वन स्टॉक इज लीडिंग, दैट इज एसबीआई। और मैं
फरवरी से मतलब मेरा एक यूट्यूब मैंने वीडियो बना के रखा था कि पीएसयू बैंक में एसबीआई शायद से सबसे स्ट्रांग है, और तभी से कंटिन्यूसली 700 770 800 से कंटिन्यूस मैं बोल रहा था कि ये स्टॉक भागेगा, एंड दिस इज द रिजल्ट. दिस इज बिकॉज we have been deeply integrated with the price and the RSI, how it is working and how it is keeping us stay ahead of the market. Weekly time frame, we can see the RSI is clearly trading into the very bullish sector and all time high पे ये सेक्टर है. मतलब देखो निफ्टी वीक है, बाकी सेक्टर वीक हो रहे, पीएसयू बैंक्स में खरीदारी हो रही है. सो ये सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये नीचे आता है सो दिस इज द एरिया ऑफ सपोर्ट. यहाँ पे हम देखते हैं ये फर्स्ट सपोर्ट में ये बाइंग होता है या नहीं. सो दिस इज द 9256. थोड़ा सा अभी ये हाई पे है, थोड़ा इसका कूल ऑफ होने देंगे, बाद में इसको हम देखते हैं. तो अभी डाइवर्जेंस भी इसमें मिल रहा है बहुत सारे, तो इसका स्पीड अभी थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है. सो ओवरऑल पीएसयू सेक्टर बैंक्स आर स्ट्रॉन्ग ओनली. बहुत ही, और निफ्टी रियलिटी की एक बार चेक कर लेते हैं रियलिटी क्या है. निफ्टी रियलिटी की रियलिटी चेक करते हैं. सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन दिख रहा है. This was a top formation, this was a low, lower highs, lower low, lower highs, lower low. ये ऊपर भी आएगा तो ये शॉर्ट सेलिंग के लिए आ रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है. तो जो लोग टेम्पररी जो मूव आता है रियलिटी स्टॉक्स में, तो उसको वो लोग शायद से ट्रेंड चेंजिंग का ये समझ रहे हैं. ये ट्रेंड चेंजिंग नहीं है बॉस. दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द टेम्पररी पुल बैक एंड द ट्रेंड कंटिन्यूएशन. सो दैट्स व्हाई इन अ टेक्निकल लैंग्वेज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. वो इजी दिखता है बट वो ड्यू टू आ ईगो, ड्यू टू आ वेरी बिगेस्ट थिंग दैट वी डोंट हैव टू नीड एनीथिंग, मतलब मुझे जरूरत नहीं है, इसके चक्कर में ना ये मार्केट का इजीनेस दिखाई नहीं देता है. बट ओवरऑल आई कैन सी द मार्केट इज कंटिन्यूसली ड्रॉइंग डाउन. ये एक रेजिस्टेंस की तरफ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट भी किया है उसने एक लास्ट वीक पहले. और यहाँ पे रिलेटिव सेक्टर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सेक्टर शॉर्ट सेलिंग में तैयार है, बिकॉज आरएसए देखो 40 के नीचे जा चुका है इसका वीकली में. जब भी बुलिश सेक्टर होता है तो ये देखो 40 तोड़ता नहीं है. मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे ये सेशन से बार बार. बट आई डोंट थिंक सो. तो पीपल आर ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग दिस स्मॉल थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज आई एम शेयरिंग विद द सीक्रेट, एंड दिस सीक्रेट इज वेरी रेयर एंड टॉट बाय द पर्सन इन डीप. मतलब उसका पीछे बहुत सारा रिसर्च कर चुका हूँ, बेटा हूँ, इन डीप डाइव जा चुका हूँ, तब जाके समझ में आ रहा है. तो दिस इज बेसिकली निफ्टी रियलिटी भी एक वीकेस्ट सेक्टर है. मतलब देखो दो सेक्टर ही ऊपर है, बैंक निफ्टी निफ्टी सॉरी निफ्टी बैंक निफ्टी एक अच्छा है, मेटल एक अच्छा है, तीन सेक्टर सिर्फ अच्छे हैं, और पीएसयू बैंक उसमें से, बाकी सभी सेक्टर एक तो रेजिस्टेंस पे है या वीक है. सो दिस इज द कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन, एंड दिस इज द मेजर थिंग दैट वी आर स्पीकिंग ओवर हियर. सो ओवरऑल निफ्टी स्मॉल कैप भी देख लेते हैं एक बार. ये भी सेम मुझे पिक्चर दिखा रहा है. इट इज ट्राइंग टू गो डाउन, इट हैज सपोर्ट टेक लिया है, रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, RSI इज गोइंग बिलो 60-40, साइडवेज का एक इंडिकेशन है और डाउन ट्रेंड भी हो सकता है. ओवरऑल एक रेजिस्टेंस ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम इट हैज टेकन, एंड वी कैन सी द निफ्टी स्मॉल कैप 250 में भी सेलिंग प्रेशर एस क्रिएट हो सकते हैं. सो ओवरऑल देयर इज नथिंग बट साइमल्टेनियसली वीकनेस 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 आ रहा है. आई एम जस्ट हैमरिंग दिस वर्ड वीकनेस, और ये शॉर्ट सेलिंग की तरफ हमें झुकने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज द पॉइंट और द निडल इज गोइंग टू द बेरिशनेस बिकॉज ऑफ द सेक्टरल इंडेक्सेस थिंग. सो इन आफ्टर द 3 days ऑल्सो, मतलब मैं अभी ये बोल रहा हूँ, अगर ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इनकेस आने वाले समय में होता है, चेंजेस स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं 2-3 दिन में, तो थर्सडे पे हम इसको वापस से एक बार रिव्यू करेंगे और फिर समझेंगे कि क्या है क्या नहीं एग्जैक्टली. अगर वहां से भी एक नेगेटिव रिवर्सल आता है तो शायद से there is a confirmation that market is not so bullish, market wants to go down, we need to be a short seller with the market and be ready with the capital to make the money in a short selling time. So this was a whole scenario, and guys we can unmute yourself, we can go ahead with the questions or the doubts we can cover into this talk. So Sanket sir, thank you so much for your time. एक मेरा few questions हैं. Can I ask? Yes, go ahead sir. अच्छा सर, नाउ अभी आपने बोला कि देयर आर क्वाइट अ फ्यू सेक्टर्स जो साइडवेज दिखाई दे रहा है, एंड बट देन आरएसआई इज क्लियरली शोइंग कि वो गिरने की देरी में बस गिर सकता है. गिर सकता है. अभी इतने सारे सेक्टर्स है, लाइक स्मॉल कैप है, हाँ मिड कैप एक्सेट्रा. नाउ
निफ्टी 200 में इनके स्टॉक्स रहेंगे ना, हम्म। ये अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स निफ्टी 200 में रहेंगे, राइट? हाँ, Right. So when these sectors fall, would you be able to help us analyze कौन से stocks actually अच्छे momentum दे सकते हैं so that we can grab that opportunity that time? Is that possible? ओके, मतलब ये सी फॉर एग्जांपल अभी आईटी सेक्टर का लेते हैं, बहुत अभी फिलहाल ये तामझाम Yes. में है, तो आईटी सेक्टर वीकनेस में है। तो इसमें आईटी सेक्टर में वीकनेस में जो स्टॉक हम देख रहे हैं, तो सिंपलिसिटी क्या करना है, गो टू द निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी का इंडेक्स है उसको लिस्ट में जाइए, क्लिक ऑन द नेगेटिव, मतलब Okay. जो परसेंट चेंज होता है उस पर क्लिक कीजिए। आपको जो परसेंट चेंज में जो पहला देखो स्टॉक कौन सा है, टेक महिंद्रा वीक है अभी। इफ आई एम क्लिकिंग द टेक महिंद्रा Okay. एंड इन्फोसिस, जो मैं कब से लास्ट वीक से बोल रहा हूँ, ये देखो अभी ये जो मेरे एक सपोर्ट जोन था, ये Correct. देखो 1600 ये ब्रेक किया है उसने। ओके, ये Correct. स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, ये देखो इट वाज ट्राइंग टू क्लाइंब अप, बट अगेन व्हेन इट इज डिड नॉट गिवन माय सिग्नल, मतलब ये रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर रहा था यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा डाउट ही आ रहा था कि ये नहीं जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिखाने की कोशिश किया है यहाँ तक, देखो यहाँ तक मुझे दिखाने की कोशिश किया एट दिस पॉइंट, एट दिस, कैन यू सी दिस एरिया, Yeah. I'll just show you daily। ये देखो यहाँ तक मुझे एकदम पॉजिटिव लग रहा था, ये ऊपर जा रहा है बराबर, ये भी ब्रेक ऑफ करेगा, मतलब आईटी सेक्टर वीक है और ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक उसमें से था। और मैं इसमें से और एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ ई क्लस्ट के बारे में, आई शो दैट स्टॉक इन द फ्यू मिनट्स। तो ये यहाँ पे जा रहा था, मुझे एक ही कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था कि इसका ट्रेंड इंटैक्ट है बट इसका सेक्टर वीक है, कैसे का ये स्टॉक चल सकता है फिर, मतलब कुछ तो भी ट्रैपिंग है यहाँ पे, समथिंग इज फिशी। Okay, sir. मतलब Got आप it. देखो संतोष सर, यू आर गोइंग फॉर अ ट्रिप विथ योर फैमिली, ओके, and your हाँ. wife is at another direction, you are at another direction, your kids are at another direction, how you are going to enjoy the scenario of that trip? Correct. Correct, sir. Got it. तो ये होता है। सी दिस इज अ व्हेन वी यूज अ सिंपल लॉजिक कि ये सिनेरियो है, और जब बाद में जाके देखो ये स्टॉक क्या हुआ, यहाँ पे रजिस्ट किया, ओपन ही यहाँ पे हाई पे किया, उसके बाद स्टॉक देखो कंटिन्यूसली फॉलिंग डाउन है। अभी ये नेक्स्ट सपोर्ट जोन पे भी आके बैठा है। अभी ये सपोर्ट जोन ऑलरेडी ओवरऑल टेस्टेड है, इफ आई गो बैक, दिस इज अ टेस्टेड ओवरऑल सपोर्ट जोन, एंड ये टाइम लेगा, और ये शायद से जैसे मैंने आपको बोला कि आईटी सेक्टर में थोड़ा और फॉल भी आता है, ये सब नीचे के सपोर्ट जोन इजीली ब्रेक ऑफ करेगा, बिकॉज आरएसआई एंड द प्राइस इज नॉट गेटिंग मैच। ओके, अभी इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग Okay. स्टॉक मैं आपको देता हूँ ई क्लक्स करके, ये आईटी वाला स्टॉक है, सिर्फ ये एफएनओ में नहीं है, बट आपका इसका ट्रेंड आपको चार्ट देख के समझ में आएगा। ये देखो ये पूरा अप ट्रेंड था, ये देखो Right. इट वाज अप ट्रेंड, एंड सी व्हेन द थर्ड फेब के बाद क्या हुआ, सब आईटी सेक्टर में सेलिंग प्रेशर ऑफ हो गया। आई गेटिंग माय पॉइंट? और Got it, sir. ये स्टॉक देखो सेवेंथ में, जो मतलब जब ट्रम्प का वॉर हुआ था तब देखो यहाँ पे 24, मतलब 25 रुपए था, 2500 से लेके देखो ये स्टॉक सीधा डबल हो चुका था, मतलब लगभग लगभग 5000। ओके, ये ऑलरेडी Got it. स्टॉक ये डबल हुआ, कौन सा आईटी सेक्टर का स्टॉक डबल हुआ था 2025 में? याद नहीं है सर मुझे. I don't know. होगा भी नहीं सर, क्योंकि सभी नीचे जा रही है, I एक ही don't know, स्टॉक, sir. only eclerc was the system, only eclerc was the single stock that was rallying to the all time highs। Okay. आप पूरा सेक्टर निकाल के निचोड़ लो Okay, इसको, sir. इसमें से ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, और ये भी, इसमें भी देखो आप सेलिंग प्रेशर कैसे आ रहा है, अभी क्रिएट हो रहा है। Got it, sir. ओके, सो दिस इज हाउ सी, अभी मैं इमीडिएटली आपको आज बोलूंगा कि ये स्टॉक है, ये सेक्टर में का ये स्टॉक है, अभी नहीं ये समझेगा। व्हेन द मार्केट विल गेट ओपन ऑन अ मंडे, उसमें से थोड़ा सा एक घंटे के बाद समझ में आता है कि कौन से स्टॉक में ये लोग पोजीशन क्रिएट अप करेंगे। आज मैं क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मैं अगर एनालिसिस करूंगा तो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, बट कॉन्फिडेंस वर्क कब सही सही डायरेक्शन और बूस्ट हो जाएगा, जब मेरे को कल स्टॉक मार्केट इंडिकेशन देखा कि ये सेक्टर का ये स्टॉक वीक हो रहा है। आई गेटिंग माय पॉइंट? Got it, sir. Yeah. मैं अगर Okay. इमेजिन करके मैं कार चला रहा हूँ, मुझे कार चलानी नहीं आती है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैं कार चला रहा हूँ, एंड रियलिटी वर्ल्ड में भी बिना सीखे कार चलाऊंगा तो क्या होगा?
हाँ हाँ करेक्ट। क्या होगा सर? करेक्ट नहीं सर, बताओ सही है क्या सर। होगा, क्या होगा? वी विल हिट द, मतलब सर देखो, इमेजिनेशन अपनी जगह पे है। करेक्ट। जो मैं सपने में देख रहा था, रियलिटी में केस अलग रहता है। मतलब वही मार्केट क्लोजिंग टाइम पे अलग कुछ रहता है, ओपनिंग और रियल टाइम में कुछ अलग होता है। ये जब डिफरेंस आप समझोगे ना, देन यू विल गेट टू अहेड ऑफ द मार्केट। गॉट इट सर। हम्म। सो ओके। सो नोटेड सर। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें से एक, इफ यू वांट द वन स्टॉक, मैं एक स्टॉक डिक्लेयर करता हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ये इमीडिएट नहीं, एबीबी इज ऑन माय रेडार फ्रॉम लास्ट फ्यू ओके। डेज एगो। ये देखो, ये भी आईटी कंपनी है सर। आई थिंक सो ये सेमीकंडक्टर में अभी जाके बैठ चुकी है, एबीबी, सेमीकंडक्टर कंपनी ओके नाउ। गॉट इट अभी ये दिस कंपनी इज ट्राइंग टू, दिस हैड मेड द बॉटम इन जैन, ये जैन में बॉटम किया। सर। ओके। एक महीने में देखो फ्रॉम 4600 टू 6200 के आसपास, तो 2500 पॉइंट्स का रैली, एंड समवन इज बाइंग दिस कंपनी, दैट्स व्हाई द शेयर प्राइस इज प्लंगिंग टू द अपसाइड। तो मैंने सिर्फ एक ही बोला कि गॉट इट सर। जब तक मुझे ये यहाँ पे मुझे कुछ खास दिखाई नहीं था, बिकॉज दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, आई एम जस्ट मार्किंग। तो ये जो सपोर्ट है ना, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है। जब तक ये 6500 6300 के ऊपर जाता नहीं है, तब तक इसमें कुछ अप ट्रेंड नहीं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है अभी भी, एंड अप ट्रेंड इसका कंफर्म नहीं है। हाँ, बट आने वाले समय में मुझे अगर अच्छा पैसा बनाना है, तो दिस इज अ कंपनी आई एम कीपिंग विथ मी, एंड ये अच्छा कंपनी है। ये नीचे आता है तो बाइंग के लिए मैं डेफिनेटली देखूंगा, बिकॉज शोइंग द स्ट्रेंथ, बट ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं है, इसलिए मैंने खुद को रोका है। बिकॉज सभी सेक्टर नीचे जा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस दिस कंपनी इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म, वो अलग अलग दिशा में नहीं दौड़ेगी। ओके, सो दिस इज अ थिंग ओके। दैट वी नीड टू ऑलवेज चेक कि ये सेक्टर के साथ लाइंड अप है, मैच है, मैच हो रहा है, तब जाके आपका पैसा बनेगा। और फॉर एग्जांपल आप आईटी, अब जैसे आपने या हमने ये सेक्टर देखा था, एफएमसीजी सेक्टर देखा था, आईटीसी सभी नीचे है, देन व्हाई यस। द टाटा कंज्यूमर इज अप? टाटा कंज्यूमर इज नथिंग बट स्टारबक्स। ओह ओके। ओके। हाँ, इट्स अ स्टारबक्स। ये देखो, ये भी साइडवेज जा रहा है, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ ये साइडवेज है। ये एक अकेला स्टॉक है जो थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के नजदीक है। अब बाकी के स्टॉक देखो, एफएमसीजी में नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले इंडिया, ये सभी नीचे है, और इसमें से ये एक पॉजिटिव स्टॉक है। बट ये पॉजिटिव का मैं आचार नहीं डाल सकता, ओके। क्योंकि सब सेक्टर नीचे जा रहे हैं, एक ही स्टॉक ऊपर है। मतलब ये ट्रैपिंग के लिए उन्होंने ये सेक्टर का स्टॉक ऊपर रखा है, कि लोग इसको देख के चेस आउट करेंगे, ओके। एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उनका पार्टी होने वाला है अरे इसका भी। बाप रे। हाँ। तो यही मैं आने गॉट वाले जो जो मेरा लोनावाला सेशन है, तो यही तो मैं आपको सबको वही तो बताना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है, कि क्यों लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं, क्या नहीं होते। वो इट। पूरा दिन वही मुझे डिस्कस करना है आपके साथ। वो क्लियरिटी एक बार मिल गई गॉट ना, इट सर। सी मुझे एक ही बात समझ में आती है, जब तक आदमी को क्लियरिटी नहीं ना, आदमी कुछ काम नहीं कर सकता। उसका उसको मालूम ही नहीं किधर पहुंचना है, कौन सा कुछ चीज लेके किधर जाना है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ही इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, इज नॉट गोइंग टू मेक द मनी इन द स्टॉक मार्केट। हम्म। ओके, ओवरऑल मुझे सभी सेक्टर, सभी, मैंने 10-12 सेक्टर देखे, उसमें से सभी सेक्टर थोड़ा वीकनेस की तरफ झुके हुए हैं, और 3 सेक्टर सिर्फ ओके। खाली ऊपर है, पीएसयू बैंक्स, मेटल्स ऊपर है, एंड आई थिंक सो कौन सा था, बैंक निफ्टी ऊपर है। बाकी तो सेक्टर ऐसे है ही नहीं। सबसे, जो मैं टग ऑफ वॉर में बोल रहा हूँ, सबसे पहले जो मैनेज कर रहे हैं इंडेक्स को, आईटी को नीचे लेके जा रहे, बैंक राइट निफ्टी को सर। ऊपर लेके जा रहे, तो किस कौन से सेक्टर में आपका पैसा बनने वाला है? फिर नहीं बनेगा। आप कितने भी वो कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स लगाओ, कितना भी आप जोर लगाओ, तो नहीं होने वाला, बिकॉज ये साइकोलॉजिकली ये मार्केट दिखाया कुछ और गया है, और समझने में कुछ और गया है। ये जब तक आप डीप डाइव नहीं करते, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो दिस यस इज द सर। थिंग। अभी ये देखो, ये सिंप्लिसिटी, ये साइडवेज है, कुछ नहीं करेगा। और ये स्टॉक में मैंने आपको वही बोला, अभी ये सेम आईटीसी ले लो, एफएमसीजी में, अभी आप अभी खुद ही बताओ कि आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये ले लो। सर आईटीसी वैसे भी नीचे है इन द हाँ, सेंस इट इज नॉट शोइंग एनी स्ट्रेंथ। या
अभी उसमें से स्ट्रेंथ कौन सा दिखा रहा है? Right, टाटा I can कंज्यूमर। see. टाटा कंज्यूमर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बराबर। Yes, sir. हाँ, उसमें से Yes. अभी आप नेस्ले देखते हैं। देखो नेस्ले में भी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन नेस्ले? Sir, Nestle is close to all-time high ना? If I'm not wrong, नहीं दिख रहा है वो ऐसा? तो गुड है, बट अभी भी इसमें It is स्ट्रेंथ more नहीं है। closer to all. इसमें गुड है बट अभी स्ट्रेंथ नहीं है इसमें। हाँ, but RSI is bending down ना? RSI is bending down. या और उसमें से और Understood, sir. ये कौन सा है? हिंदुस्तान यूनिलीवर देखते हैं। ये देखो क्या स्ट्रेंथ है इसमें, बताओ। This is Hindustan Unilever. नहीं sir. This is also going down. वो Yes. support zone के भी नीचे है. ये साइडवेज जा रहा है फिलहाल तो, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ऊपर जाता है तो देखो ऐसा ट्रैप करता है, वापस नीचे लेके आता है, ऊपर जाता है ट्रैप करता है, नीचे लेके आता है। तो दिस इज अ ट्रैपिंग, और ये ट्रैप हो रहा है, मतलब जो सेक्टर ही परफॉर्म नहीं करेंगे तो स्टॉक क्यों परफॉर्म करेंगे? तो सेक्टर की वजह से स्टॉक है, स्टॉक की वजह से सेक्टर है, ये दोनों अलाइंड होते हैं। Right, sir. नेस्ले मेरे पास एक 6 stocks है. Can I share the names with you? Can you tell me how it looks? मैं ऐसे ढूंढ रहा था निफ्टी में ओके। कल मुझे ऐसे कुछ स्टॉक्स दिखाई दिए. एक है सर न्यूजन करके एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है. हाँ जबकि न्यूजन, मार्केट न्यूजन नीचे गिर रही है अभी. नहीं नहीं, ये मेरा मेरा ये पर्सनली बहुत अच्छी कंपनी है न्यूजन। जस्ट न्यूजन टेक्नोलॉजीज, ये व्हेन आई वाज टीचिंग टू माय स्टूडेंट, इसके मेरे पास अरे बाप रे। हाँ, जब मैं स्टूडेंट को दिसंबर मंथ में सिखा रहा था, नहीं न्यूजन, हाँ, सो ओवरऑल एक मिनट, इट इज वेरी वीक ना नाउ. वेरी वीक सर, वेरी वीक। मतलब पूरा देखो, अभी सिंपल सिंपली अगेन सेम सेम थिंग, सेक्टर ही वीक है, स्टॉक वीक कर दिया उन्होंने, अच्छा स्टॉक वीक हो गया। Yes, sir. So there is one more stock का नाम है टाइटन बायो करके. टाइटन बायोटेक. इट्स अ बायोटेक कंपनी. It has gained a lot due to US trade war. तो बहुत पैदा हुआ है. बट मुझे समझना है, इज इट लुकिंग गुड? बिकॉज ना ये पता नहीं, इट लुक्स टू बी वेरी हाइप्ड अप, बट कंपनी एक्चुअली मैनेजमेंट अच्छा, सब अच्छा है सर उसका. आई डोंट नो. राइट नाउ दे हैव स्प्लिटेड द कंपनी आल्सो, इसका स्प्लिट हो चुका है टाइटन बायो का। एंड यहाँ पे थोड़ा सा जब सेक्टर ये इसमें था, तो दिस इज एन स्टॉक दैट, मतलब ये थोड़ा सा डाइसी स्टॉक है। व्हेन वी हैव दिस सिस्टम लाइक दिस कि सर्किट लगता है, वो खुलता नहीं है, तो दैट्स अ वेरी रिस्की, मतलब इन एंड आउट इज वेरी रिस्की ओवर हियर। तो बेस्ट वे अभी तो ये ऑल टाइम हाई पे है, स्ट्रेंथ तो दिखाई दिया उसने, बट ओवरऑल ये ट्रैपिंग भी हो सकता है, बिकॉज ये न्यूज बेस के ऊपर चला है। अभी इफ आई वांट अ सपोर्ट, इट इज नियर अराउंड अबाउट 251। ओके. ये थोड़ा सा स्प्लिट, बट इट्स स्टिल मच हायर ना राइट नाउ. हाँ, ये थोड़ा सा क्या हुआ है, या तो उसने एक अभी क्या हुआ, स्प्लिट एंड बोनस की वजह से ना प्राइस इज नॉट शोइंग मी दिस गुड्स वे, जस्ट वेट। हाँ, बट इट्स सर. और एक कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज करके. The entire market is falling, and this is the only company that has been going up in IT. NetWeb. Titan हाँ Biotech के बाद NetWeb. हाँ नेटवेब, NETW. हाँ नहीं नहीं वही है, वही है। तो ओवरऑल ये अभी तो नहीं है फिलहाल, इसका सपोर्ट 210 के आसपास ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो सर देयर। सर NetWeb देखिए ना.
हाँ नेट वेब देखे, हाँ, नेट वेब। नेट वेब ये यही कंपनी मैं, हाँ नेट वेब टेक्नोलॉजीज में बहुत अच्छी है। हाँ ये देखो मेरा मुझे सब, पहले क्या लगता है ना, मतलब I wanted to- अभी देखो सिंपलिसिटी जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छा है। ये मैं स्टूडेंट्स को व्हेन देयर वाज स्टूडेंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मैं इनको ये कंपनी रेकमेंड कर रहा था, मैं मेरे Yes, स्टूडेंट sir. को भी। और मैंने ये बोला था कि दिस इज अ सपोर्ट जोन, आई विल शो यू माय, आई विल पुट डाउन माय स्क्रीनशॉट विद दिस आल्सो। कि नेट, सॉरी मैं वो नेट वेब बोल रहा था, नेट नेट जेन पे मेरा थोड़ा सा फोकस हो गया, मैं वही बोला। तो ये कंपनी उसमें से थोड़ी सी स्ट्रांग है, बट अगेन मैं इसको ज्यादा इम्प्लीकेशन नहीं दे सकता बिकॉज सेक्टर मेरा खराब है। हाँ हाँ हाँ, मेरी गॉट गाड़ी, इट। देखो सर मेरा गाड़ी का इंजन ही खराब है, तो मेरे वो गाड़ी कुछ काम का नहीं है। ना गाड़ी का टायर यस सर। चलेगा, ना गाड़ी गाड़ी का स्पीडोमीटर चलेगा, ना हॉर्न चलेगा, ना बैटरी चलेगा, ना कुछ नहीं चलेगा। सिंपलिसिटी उत्तर है उसका आंसर। राइट सर। नेटवर्क देखो, ये मैंने आपको देखो, बिकॉज लगाया तो देखो इसका ही सपोर्ट जोन मैंने बोला था 3000 के आसपास कुछ भी सपोर्ट है। अच्छा, वो सपोर्ट जोन तोड़ा नहीं, देखो उसने अभी तक वो ओके, इंटैक्ट है। तो ये ऐसी कंपनी स्ट्रांग होती है, बट बेसिकली मैं इस पे लार्ज बेट नहीं कर सकता अभी भी फिलहाल, बिकॉज माई सेक्टर इज वेरी अगेंस्ट विद दिस स्टॉक। तो जैसा ई क्लस जो अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक था, तो ये भी उसको ड्रैग डाउन कर देगा नीचे। गॉट इट सर। या So there's one stock which is monopoly in food oil, मतलब food grade oil बनाता है हम्म for chocolate companies, and it's the only company in India. हम्म It's called Manorama Industries. It's a new company. पहले वो private limited company था, but अभी it's a public limited company, and I think 8,000 crore की company है Manorama Industries. जरा देखेंगे कैसा Manorama Industries, वो monopoly stock है सर। एंड मैंने क्या देखा, जब भी निफ्टी नीचे जाता है ये ऊपर जाता है, और निफ्टी ऊपर गया तो ये नीचे आता है। आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स अ वेरी गुड स्टॉक सर। माय ओवरऑल फ्रेंड है ना, ही ओवरऑल यूज्ड टू वर्क इन दिस कंपनी। ओके, ये फिलहाल तो ये साइडवेज ही है अभी भी। ये यू नो पीपल, हाँ अपने, मतलब जितने बड़े बड़े बीजेपी के नेता है ना, लाइक शिवराज चौहान वगैरह, सब इसमें इन्वेस्ट किया है। इट्स एमपी बेस्ड कंपनी सर, इट्स अ वेरी बिग कंपनी। बहुत लोगों का, बहुत बड़े लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट है। मेरा फ्रेंड वहां काम करता था ना पहले, उसने ही मुझे बोला हम्म ये कंपनी अच्छी है, तुम खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए, बट आई डिडंट हैव मनी, तो मैंने खरीदा नहीं। बट आई थॉट हम्म। अभी आज ट्रेनिंग है तो मैं आपसे पूछता हूँ करके। तो ये सिंपलिसिटी, ये देखो RSI मेरा साइडवेज है, मैंने आपको पहले देख के बताया था कि ये साइडवेज है, कुछ नहीं करेगा। गॉट सिंपल इट सर। सिंपलिसिटी है सर, मार्केट अगर नीचे जाने की तैयारी में, कौन अपना बेवकूफ बड़ा आदमी यहाँ पे पछड़ा रहा है। हम्म। ओके। गॉट इट सर। सो लास्ट टाइम पे एक 2 हफ्ते पहले एक आई गॉट अ रिपोर्ट कि 3 फरवरी में जब अपना ये हुआ था ना, यूएस ट्रेड डील अनाउंस हुआ था। सो वन ऑफ यस। माय सीएस का मतलब सीए का सीए फ्रेंड है दिल्ली वाला। तो वहाँ पे एक बड़ा बिजनेसमैन है, he has a very luxurious 5 star hotel, he manages that। तो उसका कम से कम ऑप्शन सेलिंग में he lost 150 crores in a single day। व्हाट? yes, he lost बाप रे। 150 crores in a single day because उसने कुछ भी प्री एग्जामिन किया था, उसका केस हिस्ट्री मेरे पास आया था। तो पहले मैंने जब देखा, सब कुछ एनालिसिस किया, कि उसने मुझे बताया कि संकेत, वॉट एवर हैपेंस यू जस्ट गिव मी द व्हाट द मिस्टेक माय क्लाइंट हैज डन, and we want to rectify the mistake. So I think so he has gone to 20 to 25 people around the India to find the mistake he has done in this thing, and he has lost that ample of money। तो मैंने उसका 7 to 8 months का रिकॉर्ड पहले चेक किया, तब जाके पता चला कि बॉस, he has made very good money in option selling। okay, he made very good money on Jan, he started again aggressively selling कॉल एंड पुट साइड, मतलब ओटीएम वाले जो कॉल पुट होते हैं ना, तो बेसिकली वो जीरो हो जाता है, तो उसका वो इंटेंशन था कि उसको ग्रैब कर ले। ठीक है, सही है, बराबर है। तो ही स्टार्टेड सेलिंग एग्रेसिवली ऑन दैट ओटीएम कॉल एंड पुट। ओके, जो बेसिकली करते हैं, बट एक चीज याद थी कि ही डजंट हैव इन डीप मच मोर डिटेल नॉलेज कि ये कैसे काम करता है, कि कब जाके क्या, कौन सी चीज को ज्यादा वेटेज देना है, कौन सी चीज को कम वेटेज देना है, कौन से प्राइस पे। तो ही फॉरगॉट राइट। दैट। तो शायद से वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कम था। तो वो
मैंने एक वो चीज नोटिस की कि हैड अ लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे तो वो देखा मैंने, फिर कुछ नहीं हो रहा, फिर उसने और एक बड़ी गलती की। he had a big capital and he has used the discounting broker. See, I am not against any discounting broker या कुछ ब्रोकर के आलाप नहीं। उसका पहली चीज ये हुआ कि 3 फेब को जब अनाउंसमेंट हुआ यूएस ट्रेड डील के आसपास का रात को, जीरोदा का हमेशा का मैंने प्रॉब्लम देखा है कि मैंने ग्रुप पे भी डाला था कि व्हेन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन हैपन वी डोंट हैव एनीथिंग। उसको पोजीशन काटने को भी मौका नहीं दिया, उसको ना हेज करने का मौका दिया, सीधा जीरोदा वालों ने उसको ब्लॉक करके रखा था शायद सभी ट्रेडर्स को। 9:45 तक उसको लॉगिन नहीं मिला करने को। एंड व्हेन ही लॉगिन इनटू द अकाउंट, ही लॉगिन इनटू द अकाउंट, 150 करोड़ वाइप्ड आउट हो चुका था उसका। जो अब बंदे ने ऑप्शन आई लॉस्ट योर वॉइस फॉर 30 सेकंड। यस आपकी जो आवाज कट गया सर, एक बार वापस बोलेंगे? हाँ वो डिस्काउंट ब्रोकर से बात कीजिए ना। हाँ। तो डिस्काउंट ब्रोकर का क्या हुआ, एक तो बड़ी गलती की, इतना बड़े कैपिटल पे डिस्काउंट ब्रोकर को चेस कर रहे थे ये लोग। ओके, पैसे बचने के चक्कर में उसका बैकअप ही नहीं है। 9:45 तक उसको लॉगिन ही नहीं मिला। बाप रे। हाँ, अब उसको लगा था कि कुछ तो भी करके पोजीशन को शिफ्टिंग करेंगे, कुछ तो भी करेंगे। 9:45 तक उसको लॉगिन नहीं मिला। उसका पोजीशन जो 30 रुपए का ऑप्शन उसने बेचा था, शायद से कॉल बेचा था, उसका ऑप्शन उसको काटा गया 350-400 रुपए के आसपास। अभी जो वहां पे जो बंदा पैसा पूरा 8-9 महीने कमा रहा था, एक ही झटके में उसका पूरा कैपिटल भी गया और ऊपर 50 करोड़ का बड़ा लॉस भी हुआ। तो वो बड़ी चीज मैंने देखी कि आपका कैपिटल कम हो छोटा हो, नीड टू गेट अवे फ्रॉम दिस डिस्काउंटिंग ब्रोकर इफ यू वांट टू कीप योर सेफ साइड। थोड़ा महंगा जाएगा जाएगा, बट बॉस उसके चक्कर में वो नदी मतलब क्यों खोद के लेना है खुद को। हम्म। वो सस्ते के चक्कर में फिर रस्से का मल चिपक गया उसके पीछे सर। द जीरो दैट टेकन आउट हिज एंटायर थिंग। एंड वो मैंने एक ऑब्जर्व किया था कि डिस्काउंटिंग, आई थिंक सो मैंने वो भी डाला था ऑन 3 फेब 2023 पे कि जीरोदा के यूजर्स को बहुत सारे मुझे क्लाइंट्स पूछ रहे थे कि सर जीरोदा लॉगिन नहीं हो रहा, क्या करें हम। मतलब मैं तो कुछ नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग जीरोदा फॉर लास्ट एवरीथिंग। आई नो कि व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंस एंड द माय प्रायोरिटी टू द सेफेस्ट थिंग्स, आई विल चूज दिस बिग प्लेयर्स, बिग बिग ब्रोकर्स। मुझे बैकअप चाहिए, आई वांट दिस बैकअप। Right, sir. But I have had issues with Sharekhan also, for your information. Okay? ओके When मैं पहले commodities में ट्रेड करने की कोशिश करता था ना, there were 3 occasions जब मैंने मार्केट में शॉर्ट किया था, लॉन्ग बैक, मे बी 6 months लगे आप मेरे लाइफ में आने के पहले। मार्केट में मैंने क्रूड शॉर्ट किया था एंड क्रूड वेंट अप एंड आई कुडंट डू एनीथिंग दैट इवनिंग। इनफैक्ट कोई सपोर्ट भी नहीं था शारखान में। मैंने मैसेज भेजा, उन्होंने सिर्फ अपॉलॉजी भेजा। आई लॉस्ट 38,000 रुपीज द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो होता है सर, आई एम नॉट वी सेइंग नीड। कि उसको हाँ, ऐसा है। हाँ, सो वी नीड अ सर गाइडेंस, होता है सर, होता मतलब है। हाँ, बट सर यहाँ पे कैसा है मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि डिस्काउंट ब्रोकर्स आई अंडरस्टैंड, बट ट्रेडिशनल ब्रोकर्स को थोड़ा अपना सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल शारखान सेल्स की सपोर्ट है उनके पास। अभी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, थ्री टाइम्स का सपोर्ट नहीं था शाम को। उन्होंने मुझे बोला था अब मेल करो, यहाँ को डेस्क पे अवेलेबल नहीं है। बट अब जो डिस्काउंट वाले बोल रहे हैं ना, वो टू सम एक्सटेंट इट इज करेक्ट। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। सी अगेन द थिंग इज दैट कि व्हेन आई वाज दिस थिंग, मैंने वो देखा, फिर वो ये एक चीज वो बंदा जो भूल गया कि जो शॉर्टिंग कर रहा था इतना बड़ा, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा था कि वो ही वाज ऑलरेडी इनटू द प्रॉफिट, कि बजट के टाइम पे उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, ही मेड वेरी गुड मनी इन ऑप्शन सेलिंग। पर व्हाई डिड ही कैरी द पोजीशन, आई डोंट नो कि उसने वो कैरी क्यों किया। इसमें और एक गलती मुझे दिखाई दी कि व्हेन यू आर प्रॉफिट वी नीड टू कट दैट प्रॉफिट ना, मतलब थोड़ा तो भी लेके जाना चाहिए था, उसने वो भी नहीं किया। आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग इनटू दिस क्लाइंट माइंड बिकॉज आई हैव नॉट इंटरेक्टेड विद दिस क्लाइंट अगेन। तो आई थिंक सो आने वाले समय में वो क्लाइंट इंटरेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि कैसा चलता है, क्या होता है। बट वही मैं देखा कि आप कुछ भी करो, वी रिक्वायर्ड अ स्पेशल मेंटर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि व्हाई वी नीड टू डू दिस, व्हाई डोंट वी नीड टू डू दैट। कि बहुत सारे मुझे लोग बोल रहे थे कि सर वी हैव सीन इन द ग्रुप आल्सो, रिलायंस मिस हुआ तो वापस से रिलायंस का वही सेम रेट आया तो हमको चेस करना है। ओके, क्यों करना है चेस? we don't have to run behind these things because see, that time the opportunity was different, this time the opportunity is different again.
अगर ये मुझे अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा मिल रहा था तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि स्टार्ट बुकिंग द प्रॉफिट, ये क्यों मैं आपको हैमर करते रहता हूँ, बिकॉज वी शुड बी इन दैट अलाइन मोड। बट वो नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। अभी ऑन दिस मनोरमा चैट बैक अगेन, तो फिलहाल तो ये एक सपोर्ट लेके ऐसे ऊपर भागा है एंड हैज टेकन द रेजिस्टेंस, दिस वाज अ सपोर्ट। तो एक रेंज में चल रहा है, 1100 और 1500 के बीच में है। जब तक 1500 1600 के ऊपर नहीं तब तक कुछ नहीं है, और 1100 के नीचे है तो कुछ नहीं है, साइडवेज रहेगा ये इसका ओवरऑल। तो Okay. फिलहाल तो स्ट्रेंथ तो है, बट इतना भी स्ट्रेंथ नहीं, बिकॉज अब ये इफ आई टेक द ट्रेंड लाइन टू दिस थिंग, तो वी कैन सी दैट दिस इज गोइंग इनटू द डाउनसाइड चैनल। Hmm. दिख रहा है आपको? Yes, sir. What about RSI? You tell me what you have In learned this into the case, RSI. You tell me. for me, I mean, मेरा ये view है that RSI is above 40. That means it is not totally bearish, but it is also not cross 50. मतलब it is not cross 60, so it is also not bullish. So maybe it is waiting for a trend in the market to happen, so it can take a trend. Until then, it probably looks sideways, or maybe ईरान के ऊपर कोई मिसाइल भाग गया। ठीक है। सिंपल है ना यार, और क्या चाहिए, और यही तो सिखा रहा हूँ मैं। सी आई एम जस्ट टीचिंग दिस थिंग इन अ सिंपलेस्ट वे। यस 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 एब्सोल्युटली। तो 60-40 ये सीधा सीधा साइडवेज ही है, अभी तो मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता। एंड मैंने आपको प्राइस में भी बता दिया कि इफ यू ड्रॉ द चैनलिंग ऑल्सो टू द डाउन साइड, तो ये चैनल में भी मस्त नीचे की तरफ झुकने की कोशिश कर रहा है। एंड मुझे तो स्ट्रेंथ नहीं है अभी फिलहाल, स्टॉक बहुत अच्छा बढ़ चुका है, इट इज एन वेरी गुड स्टॉक। बट एक चीज मैं एक हाईलाइट करता हूँ कि डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द न्यूज ऑल्सो, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग है ना न्यूज फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हुआ था कि किसी कंपनी ने बायबैक किया था, बीच में बहुत बड़ा बायबैक किया था। तो मुझे आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द कंपनी नेम, मैं निकालूंगा उसका केस स्टडी। तो वो बायबैक किया तो लोगों को लगा कि चलो ये शेयर वापस से भागने वाला है शायद से। अनफॉर्चुनेटली शेयर टम्बल डाउन 40-60% बायबैक के बाद भी। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि बायबैक होता है या बड़ा इन्वेस्टर कोई तो भी पैसा डालता है तो वो स्टॉक भागने वाला है। इट Okay, इज sir. इट इज प्योरली कोरिलेटेड विथ दिस प्राइस। इफ द बिग पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द प्राइस, ही विल चेज द प्राइस टू द अपसाइड। मतलब सिंपल सिंपल मैं आपको इसको मैं ऐसा है ना, एक टीवीएस मोटर का एग्जांपल दे दूंगा। मल्टी बैगर स्टॉक है ये तो, अभी बड़ा प्लेयर उसको नीचे लाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। ये देखो थोड़ा सा साइडवेज होता है, बट इफ यू चेक द फुल ट्रेंड, ये देखो कंटिन्यूसली इट इज गोइंग अप कंटिन्यूसली। हाँ, ये मैंने देखा है सर। ये क्या? कंटिन्यूसली इट्स गोइंग अप। तो ये स्टॉक यहाँ पे भी जब ट्रेड कर रहे थे, हम यहाँ पे भी चेस कर रहे थे। आई थिंक सो वी आर वेरी लेट, आई थिंक सो कौशिक ने शायद से आपको ऐड नहीं किया था, बट ये मैं ऑलरेडी चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि ये स्टॉक ले लो, ये भागने वाला है। मुझे मालूम नहीं कि जीएसटी का न्यूज है या नहीं, उससे पहले मुझे चार्ट और प्राइस में बता देता कि शायद से कोई तुम्हें ना इसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा है। Got it, sir. एंड दैट्स आई एम जस्ट शेयरिंग इनटू दिस थिंग। जो मुझे दिख रहा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी मुझे क्या दिख रहा है, मैंने आपके सामने एनालिसिस किया सब कुछ। आई एम नॉट प्री प्लान फॉर दिस। वो प्री प्लान करके आऊंगा तो सब क्या बोलते हैं, अरे Correct. इसको पहले से मालूम था। वो प्री प्लान में क्या होता है, फिर मेरा कंफ्यूजन बढ़ता है आपको बोलने से पहले। Correct, sir. ओके। हाँ अभी आप बोलोगे तो जैसे मैंने आपको बोला ऑटो सेक्टर वीक स्टॉक है, इसमें से एक आप बोलते हो तो शायद से 3700 के नीचे, 3793 है, 3750 के नीचे लगभग लगभग। हाँ 3750 के नीचे प्राइस मुझे बता रही है कि ये टंबल करेगा। तो इसके नीचे जब प्राइस जाएगी 3750 के नीचे, तो मोस्ट प्रोबब्ली विल गेट अ वेरी बिग एक्शन टू द डाउन साइड। आप उसका पुट बाइंग कर सकते हो, क्योंकि जब तक ये प्राइस निकलेगा नहीं तब तक मुझे स्ट्रेंथ मिलेगा ना ऑप्शंस में। बट ओवरऑल दिस इज शोइंग मी द स्ट्रेंथ। ये वीकनेस का स्ट्रेंथ मिलेगा और ये स्ट्राइक कर देगा नीचे, शायद से ये गैप भी क्लोज करने को नीचे आ सकता है। तो 3600 के आसपास का ये है गैप है। So, मेरा ही पूछना है, now, do you think TVS will come down to 3512? टीवीएस 3512 फॉर दिस गैप आ सकता है सर। Yes. ईरान का बॉम्ब डालने तो एक ही दिन में आ जाएगा।
लेट द ईरान एंड यूएस गेट फाइट, टफ वॉर होने दो इनका सर। हम्म, इनकेस ये वॉर चालू हो जाएगा ना सर, एक्सपोर्ट्स का हैमर हो जाएगा, और टीवीएस का 99% एक्सपोर्ट साउथ अफ्रीका में भी हो रहा है अभी, इनका एक्सपोर्ट ओ हो जाएगा। ओके। तो जब ये अरेबियन सी में वॉर चालू हो जाएगा, इट इज नॉट इजी टू क्रॉस द पनामा कैनल और समथिंग एल्स, तो ये सोचते नहीं सर लोग। हाँ वो एक एक बे है, इट्स कॉल्ड बे ऑफ होमोज करके, ईरान का। so they हम्म are trying to capture that entire base so that no ships can pass through that. हम्म। तो सर इसमें तो फिर आप समझ लो कि मार्केट में कितना वीकनेस है इनकेस वो होता है, कि if they're trying to capture, an RSI is continuously telling me it's a continuous uptrend, and it is showing me the divergence from here. If I draw the trend line on the RSI also, हम्म, if I draw this trend line, हाँ you can clearly see कि what is happening. ये कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, बट स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रहा, क्यों? देखो ये डाइवर्जेंस है। और यही चीज मैं आपको उस दिन जब मिलूंगा सामने फेस टू फेस, तो आप ये देख सकते हो, सीख सकते हो थोड़ा सा कि क्या है इसके पीछे का। एंड दिस इज द थिंग कि प्राइस इज गोइंग अप, दिस इज शोइंग द डाइवर्जेंस मीन स्पीड। देखो तो आप यहाँ पे भी देखो, दो तीन बड़े कैंडल बनते हैं, बाद में छोटे 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 कैंडल कर करके नीचे आता है। इट डजेंट कीप होल्डिंग। सो ये अभी मुझे यही दिख रहा है कि ये इनकेस दिस दिस 3750 के नीचे जाता है, इसमें शायद से पुट के लिए मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा। तो इसका पुट का देख लेते हैं, टीवीएस मोटर्स का। इन्फोसिस भी वीक है, वैसे मैं आईटी सेक्टर को भी शॉर्ट सेलिंग के लिए ही देख रहा हूँ, बिकॉज ये इजीली ड्रॉप डाउन हो जाएगा, बट ऑटो सेक्टर अभी वीक हो रहा है साथ साथ। तो 38 यहाँ पे टीवीएस ओके। मोटर्स। अभी फेब तो हो चुका है, 4 दिन में तो क्या एक्सपायरी, तो नेक्स्ट मंथ का ही मैं देखूंगा शायद से। सो यस। 3800 का 97 रुपीज चल रहा है, तो जो रेट अच्छा रहेगा, जैसे वो लेवल ट्रिगर आउट होगा 3800 या 3750 का भी है, 40 का भी है, तो ये भी ऑप्शन देख सकते हैं, इन द मनी हो जाएंगे, बिकॉज अभी तो फिलहाल ये इन द मनी दिख रहा है। बट 3760 या 3800 के आसपास मैं पुट्स देखूंगा, बट अंटिल अनलेस माय प्राइस इज नॉट टेलिंग मी समथिंग कि समथिंग गड़बड़ है, तो कुछ नहीं कर सकता मैं इसके ऊपर। वो गड़बड़ हुआ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ करेक्ट सर। सर मुझे और एक सवाल था हम्म। ऑन सिमिलर लाइंस। पता नहीं मेरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जियो फाइनेंस उठेगा वापस। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक बार देखेंगे, लास्ट स्टॉक मैं रिक्वेस्ट, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। हम्म, यो पेन उठेगा मे तो। बी completely wrong, but वो it is retraced towards the buy zone now in the sense, जब मैं मंथली, आपने जो भी अभी तक सिखाया ना, मैं देखा कि हाँ। मंथली में since it's only started 2 years ago, मंथली में right now it is at 40-47 range, वीकली में it is around just 40 के नीचे गया हुआ है, and डेली में it is around say 39-40 में चल रहा है सर। but the way the stock is placed and the way financial services going up, मुझे ऐसा फील हुआ या दिखाई दिया that वो on 2nd February the RSI was way below, like RSI was just 22, but अभी वो सेटल होके 40 तक आ चुका है RSI। तो when you see in the month of March after ये ट्रम्प मामा जो भी नाटक करेगा उसके बाद शूट होएगा, आपको लगता है क्या? नहीं। वही जियो फाइनेंस का मास है? नहीं, सी देखो, ये नहीं ना। बेसिकली ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा चुका है। जो मेरा जो सपोर्ट, जो लास्ट टाइम से मैं सबको बोल रहा था कि यहाँ से सपोर्ट से उसने एक सपोर्ट अच्छा ले लिया है, बट इट इज नॉट ट्राइंग टू क्लोज अबाउ 270 280, एंड ये सब रेजिस्टेंस एरिया है। दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, दिस इज रेजिस्टेंस एरिया। ये देखो, ये 350 का मेजर रेजिस्टेंस है। इसका जो रॉकेट छूटेगा ऊपर की तरफ, ये ओके। 350 के बाद छूटेगा। मतलब आपने वो मूवी देखा होगा ना, इसमें मिशन मार्स मार्स मिशन अक्षय कुमार का, उसमें वो ऑर्बिट में घूमते रहता है। ओके। हाँ वो बोलता है कि वो उनका ऑलरेडी टाइम जा चुका रहता है, वो ऑर्बिट में घूमते रहता है, जैसे वो ऑर्बिट के वो आउटर थ्रस्ट से बाहर निकलता है, उसका स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो उसका आउटर थ्रस्ट ये है, तो ये ऑर्बिट है इसका सबसे राइट। बड़ा। ये जैसे 350 क्रॉस करेगा ना, तब जाके ये ओके सीधा मार्स पे जाके बैठ जाएगा ये भी। बट ओवरऑल अभी तो गॉट कुछ नहीं करेगा। अभी ये साइडवेज जाएगा वापस से, इट इज डूइंग नथिंग, इट विल गो इट। अगेन साइडवेज। ये खेलते रहेगा साइडवेज जाएगा।
मैंने इसलिए यही बोला ना कि 99 सेक्टर मेरे सब नीचे बता रहे हैं, मतलब निफ्टी भी थोड़ा नीचे है, सिर्फ 3 सेक्टर ऊपर है, पीएसयू बैंक, मेटल एंड आई थिंक सो बैंक निफ्टी ऊपर है। करेक्ट, ओके, तो ये राइट। सेक्टर्स में अगर कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये शॉर्ट सेलिंग होगा, ट्रम्प कुछ तो भी डालेगा, नहीं तो ये कुछ तो भी करेंगे। देखते हैं क्या होता है। एंड मोस्टली स्टॉक मत होना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट शॉर्ट सेलिंग का सिनेरियो का बैंड बजा रहा है कि शॉर्ट सेलिंग हो जाएगा। सो डोंट गेट शॉक कि ये तो गिरा। फ्राइडे, राइट संकेत सर। तो ऑन द सेम लाइंस नो, एक क्वेरी है मेरे पास। फ्राइडे को इंडियन मार्केट थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाकर क्लोज हुआ, मतलब 116 पॉइंट्स तो। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी जब क्लोज हुआ 499 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ है। मतलब मंडे को कल जब खुलेगा शायद वो 350 या 300 350 पॉइंट ऊपर से खुलेगा। नहीं, नो तो नो डू यू नो थिंक नो नो नो, दैट? नहीं, नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी। नहीं, इसका इसका आप इसका थोड़ा सा केस स्टडी करो। इसका मैं आपको जवाब लोनावला के सेशन में ओके। दूंगा। ये क्यूरी का आंसर आपको लोनावला के सेशन में दूंगा। नहीं, देखो, आई एम नॉट सेइंग दिस। नहीं 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 नहीं, से उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा सर, बोलिए बोलिए। स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा उसको। ओके। ओके, सी ओवरऑल क्या होता है कि, एक, हाँ, ओवरऑल क्या होता है ये सर कि, भी सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ओवरऑल निफ्टी को मैं वीकनेस की तरफ देख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी द स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ होता इतना भी बड़ा, तो निफ्टी इज नॉट एबल टू क्रॉस एंड क्लोज अबाउट 26,000 एरिया ऑल्सो। 26,000 के ऊपर बंद होता था ना, तो ये आज का जो आपने जो बोला ना पॉइंट कि सर 300 350 पॉइंट का गैप अप होता था, तो मैं मान लेता था। बट कभी व्हेन द निफ्टी वाज क्लोजिंग अबाउट 26,000 एंड अबव, तब जाके इसका सिनेरियो मैच हो गया होता था। बट अभी क्या है, ये सिनेरियो मैच ही नहीं हो रहा ना, इट्स गोइंग वाइस वर्सा। आप जो एसजेक्स जो गिफ्ट निफ्टी जो बोल रहे हैं ना, यहाँ पे आई जस्ट शो यू दिस। मुझे तो वो सेलिंग प्रेशर में, मैंने और एक बार देखा सर, मैं एसजीएक्स निफ्टी में ना, मैं अजून एक बघितलं, आई सॉ वन मोर थिंग। अभी निफ्टी क्लोज एट 25,571। हाँ, एसजीएक्स निफ्टी, अगर मैंने मार्केट का मतलब सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का देख रहा हूँ, तो इट हैज क्लोज्ड एट 26,694। मतलब सॉरी, नॉट 26,694, इट हैज क्लोज्ड एट क्या बोलते हैं इसको, अनदर 300 पॉइंट्स, आई थिंक 25,894। लेकिन जब संडे को ऐसा क्या हुआ सर? कल तक तो ये दिखाई दे रहा था पॉजिटिव। तो अभी क्यों मुझे सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है इसके अंदर? तो दिस इज एसजीएक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी, वी कैन से। बिकॉज ये देखो, शायद yesterday आपने, evening I saw ना, हाँ, this was showing gift nifty. हाँ, तो मुझे अभी ये प्राइस क्यों दिखाई दे रहा है? It closed at 25,008. Ah, because it closed at 25,894 sir. Yesterday evening also I saw Saturday. मैं सोचा मैं गलत तो नहीं देख रहा हूँ। I saw that 25,894 पे close हुआ, and today now when I'm talking to you, I'm looking again. It is 25,566 only. It is less than our Nifty close. अरे बाप रे, मतलब आप बोले इतना मैनिपुलेशन होता है। सर यही तो राज खोल रहा हूं मैं, बट लोगों को वही समझ में नहीं आ रहा ना। मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि निफ्टी अगर ये 26,000, मतलब ये आपने जो 400 पॉइंट का रैली देखा, ये आपने 400 पॉइंट का रॅली देखा, ओके, जो आप बोल रहे हो, मुझे समझ में आ गया. जे आता मी मराठीत मी बोलतो त्यापेक्षा बेस्ट वे, वो हिंदीचे अच्छा मराठी में बोलतो, समज में गया. आता जर माझी निफ्टी 26,000च्या वरती क्लोजिंगच नाहीये, ओके, मग एजीएक्स निफ्टी किती का 400 पॉईंट का 1000 पॉईंट क्लोज उद्या वरती, मला फरक नाही पडणार, बिकॉज मला स्ट्रेंथच नाहीये, म्हणजे मेन माझा इंडेक्सच वीक आहे. ओ, म्हणजे आपलंच समजलं? इंडेक्सच वीक आहे ना. हा, आपलं इंडियन निफ्टी इंडेक्स वीक आहे, तो किती का त्याने तिथे उड्या मारा ना, त्याला शेवटी ते फॉलो आपल्यालाच करायचंय बेसिकली. बाप रे, अंडरस्टूड सर, माय गुडनेस. सो इमेजिन, अगर इफ यू आर नॉट टॉट मी ऑल दिस, मंडे को मैं ये सोचता था, अरे भाई ये तो ऊपर जा रहा है, चलो कॉल ले लो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, फंस गया, फंस गया, फसले तुम्ही. अंडरस्टूड. वो
जो अरबपति है, जो मतलब आपके दोस्त के जो क्लाइंट है, जो जिन्होंने 150 करोड़ हारे वो, तो दिस इज हाउ इट हैपेंड ना. तो He ये was यही thought तो something, he had everything, यही तो but रीजन they है. have ignored the main thing. हाँ. सो ये मुझे हम्म. ये अभी मैं इतको क्यों आपको इतना स्ट्रॉंग फोल्ड Right. मी बता सकतो म्हणजे मी काय एवढं स्ट्रॉंग आहे मला काय एवढं मी कॉन्फिडन्स आहे किंवा मी काय एवढं सांगू शकतो किंवा त्याच्या मागचं लूपहोल का मी तेवढं डीप साइड मी बॅक साइडला रिसर्च केलं की अरे हे का होतंय. सी मी पण जेव्हा पैसे हारले गेले माझे मला लक्षात आलं काहीतरी गडबड आहे. ही बरोबर. गडबड काय मग ती गडबड शोधण्यामध्ये माझा सगळा तो वेळ गेला. मग त्याच्याबरोबर मग मला लक्षात आलं की हे मार्केट चालवतं कसं. ओके. जर मार्केट वीक नाही मी कधी पण बघा माझा वन साइड कॉल आहे फक्त. मी वन साइड फक्त डायरेक्शन देतो लोकांना की बॉस शॉर्ट करा आज शॉर्ट करा आज शॉर्ट करा. ओके. मी लॉंग का म्हणत नाही मी इमिजिएट का नाही स्विच करत आहे. बरोबर. मी जेव्हा सेलिंग देतो तर मग बाय का टाकत नाहीये मग बाईंग साइड का येत नाही माझी कोचित येते बघा. मी 5 एप्रिल पासून शॉर्ट आहे मार्केटला. 5 एप्रिल नाही 5 जानेवारी 2024 पासून शॉर्ट आहे मी. that you can check down my WhatsApp messages. Yes, got it, sir. आप वहां से देखो मेरे सब शॉर्ट सेलिंग के मैसेज बनेंगे बाइंग का एक भी नहीं मिलेगा. माझं सगळे शॉर्ट सेलिंगचे तिथे आहेत आणि आता इंडेक्स पण मला सांगते मार्केट वीक आहे मी कशाला अगेन्स्ट जाऊन बेट करेल मी त्याच्या. मग लोकांना हे हाच तर प्रॉब्लेम है ना. मी तेच सांगतो और सबसे बड़ा आपको मैं रिविलेशन दूंगा ना वो लोनावाला की सेशन में आपको समझ में आएगा कि क्या देखना और क्या अवॉइड करना चाहिए सुबह का. तो इसके वजह से मैंने वही बोला ना कि तो ये मैं सेशन क्या कर रहा था मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि सैटरडे को भी संडे को भी लेंगे और लाइव मार्केट का जो थर्सडे होता है उस बीच में 3 दिन के बाद भी लेंगे. तो क्या होता है मार्केट थोड़ा सा ना ड्रामेटिकली चेंज होते रहता है कॉन्स्टेंट चेंज होते रहता है. तो वो 3 दिन का मैं गैप सोच रहा था कि 3 दिन के बाद मैं थोड़ा सेशन ले लूं सबके साथ. बट क्या हो रहा है कि अभी देखो आज संडे तो बहुत सारे लोग अभी बीच में 1-2 जन आ गए वापिस ही चले गए बिकॉज उन्होंने मुझे पहले बोल दिया था कि सर जॉब में है उनका वर्किंग बिकॉज मार्च एंड का कुछ तो भी ये अकाउंटिंग क्लोजिंग है तो उसके वजह से थोड़ा सा चल रहा है. बोला चलो तो मैंने उनको बोला कि बॉस रिकॉर्डिंग करना है तो इसका आपको देना पड़ेगा. आई एम नॉट चार्जिंग फॉर द एनी कंसल्टेशन राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग विद दिस. करेक्ट. तो वही मैं कर रहा हूँ बाकी कुछ नहीं अभी है. अभी 2-3 जन आए वापिस ही चले गए मैं बोला चलो इट्स ओके नॉट अ प्रॉब्लम. तो वही था कि ये जो है इसलिए मैं क्यों मिलने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो मैं एक दिन में ना आपको पूरा मैं कंसेप्ट बता सकता हूँ कि ये क्या है कहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड है और आपका कांस्टेंट कहाँ पे पैसा बनेगा. मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ. और ये आप कौन सा भी एक एनालिस्ट उठा के देख लो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा. आपको दिखाएगा चेहरे पे कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ. मैंने एनालिस्ट के मैंने हाव भाव देखे हैं साइकोलॉजी पढ़ी है. जब मार्केट अच्छा रहता है तो जो एक एंकर होता है बहुत फेमस है हिंदी एंकर मैं नाम नहीं लूंगा बट वो बहुत उछलते उछलते रहते हैं कि अभी यहाँ से बहुत पॉजिटिव है बहुत अच्छा है. जिस दिन वो पॉजिटिव बोलते हैं मार्केट उस दिन नेगेटिव काम करता है. Okay? तो यही लोनावाला सेशन में हम देखेंगे और मैं नहीं बोलूंगा आप ही बोलना मुझे मैं सिर्फ सवाल करूंगा आप बोलना मुझे कि आपने ये एक्सपीरियंस किया है या नहीं. तब जाके आपको समझ में आएगा आपकी गलती क्या है. राइट. ओके. सो ये मेरा फर्स्ट ट्रेडर्स मीट है शायद से इसके बाद बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे एंड आई एम विलिंग दैट इफ यू टेक योर फ्रेंड्स आल्सो फॉर दैट इट इज अ वेरी गुड. वो भी आएंगे तो उनको भी मजा आएगा. यस सर, मैं उनसे पक्का पूछूंगा. गिव मी टाइम टुडे इवनिंग, आई कैन. यस 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 यस. सी देखो सर देखो आई नो कि यहाँ पे लोग सभी पैसे बनाने के बेटे आई एम ऑल्सो हियर टू मेक द मनी ऑल्सो. ओके. बट क्या हो रहा है बराबर. एक चीज है ना मैं श्री श्री रविशंकर जी से मैंने सीखी है कि है ना ये पहले माइंडसेट को डेवलप करना पड़ता है. पहले उसको खोलना पड़ता है जो कचरा है उसको निकालना पड़ता है जो स्कैटर्डनेस होता है ना वो निकालना पड़ता है तब जाके नया चीज डाउनलोड कर सकते हो और उसको सुकून से चला सकते हो आप. आपने आपने देखो कि आपका हार्डवेयर बहुत अच्छा रहता है पर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होता है तो सिस्टम माल फंक्शन करते रहता है. मार्केट के बारे में वैसे आपका हार्डवेयर सब कुछ अच्छा है आपका सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है तो आपको सॉफ्टवेयर रिसेट करना पड़ेगा. बरोबर आहे सर. अभी देखो सर अभी आप तुम्ही स्वतः एक्सपिरियन्स करतात मी आयटी सेक्टरला निगेटिव्ह होतो. तुम्ही स्वतःचं टीसीएस एक्झाम्पल तुम्ही सांगा काय होते टीसीएस मध्ये. सर had I not got out ना, मेरा और 1.5-2 लाख 5 लाख में उड़ जाता. मतलब फर्स्ट थिंग
ऑलरेडी 90,000 था, बट आई सेड ओके फाइन, so 90,000 हिट है। अगर मैं भी रखता था ना सर, आई वुड हैव लॉस्ट अनदर हाउ मच, 1,80,000 आई वुड हैव लॉस्ट, एंड आई वुड हैव टू वेट, आई डोंट नो बाय व्हेन, वो भी मालूम नहीं ना कब आएगा। हम्म, गुड, मैं उतना तो मेरा सेफगार्ड किया सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट, सिंसियरली आई एम वेरी ग्रेटफुल। यस। एंड सर वही तो मैं ना, अभी देखो कि लोग गलत चीज को गलत बोलते हैं, मतलब नीचे गिर रहा है तो उसको डीप बोल रहे हैं। आप ये भी देख रहे हो, मैंने सीधा सिंप्लिसिटी बोल दिया, यार ये डीप नहीं है बॉस, इसको डीप नहीं बोलते। डीप किसको बोलते हैं आपको मालूम है? आई जस्ट शो यू एग्जांपल ऑफ दिस। राइट। एसबीआई का ले लेते हैं, अभी बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखो, ये जो डीप मिला ना सर, ये डीप है। ये देखो, ये देखो, ये सब डीप है। देखो, इसको डीप बोल सकते हैं हाँ। आप। अरे जो नीचे जा रहा है उसको डीप कैसे बोलोगे? वो तो डाउन ट्रेंड में है, मुझे मालूम नहीं है। अरे एसबीआय आता ही एसबीआय कंपनी आहे, याला वीकली चार्टला नेतो. आता ही 1.5 वर्ष झाली काहीच करत नव्हती. इथं ब्रेकआउट आला, मी इथे ऍक्टिवेट झालो की बॉस याच्यानंतर है. अभी इसका जो, अभी देखो, ये जो ये सबसे मेरा ना पुराना ये है, मैंने डाला था कि बाय एसबीआई, बहुत सारा इसका डेट नहीं रहेगा शायद से। ये देखो, मैं डालते रहता था इससे पहले, मैं लोगों को देता था कि आप ये करो, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। तो अभी आपको थोड़ा सा ये इसका ये लगेगा सर, मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ ये सब अपने ग्रुप का। मैंने कल्याण ज्वेलर 80 रुपए में दिया था, 80-100 रुपए में कल्याण ज्वेलर्स। मैंने टारगेट भी वाह 500 वाह। 500 रुपए मैंने बोला था उसका, और लोगों को पता नहीं था। ये देखो कल्याण ज्वेलर, देखो यहाँ तक जाके आया। अभी क्या हुआ है, सभी को लगता है यहाँ से वापिस से जंप करेगा, अरे ये सीधा नीचे जा रहा है बॉस। अभी आप बताओ कि इनका क्या हो गया? कुछ नहीं है। देखो सर, मैंने जब इसके पीछे का रीजनिंग बिहाइंड मैंने चालू बोला ना। सही है। मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने अभी मैंने ऑब्जर्व किया है दैट whenever you tell us to book profit, no, we should ensure we book that profit and not hold it, because otherwise we may not see it, but you see the market coming down now, हम जो profit book करना चाहते हैं मिस्टेक, तो टाइम से profit book करना चाहिए, तभी उसका फायदा है ना, नहीं तो उसका फायदा ही नहीं। सेम माइंडसेट एंड साइकोलॉजी का कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत मैंने देखा। सही है। मेरे मेरे खुद को, मेरे को चेंज करने को, मेरे को इतना तकलीफ हुआ है ना, मतलब क्या पूछूं। मेरे बहुत सारे, पर यह एक बात अच्छी हुई कि दैट जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई हैव लर्न न्यू थिंग्स एंड मैंने एक गुरुजी से एक सीखा है। मैंने जो जितने भी गुरुज है मेरे, एंड्रू कार्डवेल या कोई भी हो, सभी, मतलब व्हेन द पीपल आर, आई डू रिस्पेक्ट देम आल्सो। मैं उनसे सीखते रहता है, कीप लिसनिंग में, और साइलेंट ऑब्जर्वर में, मैं साइलेंट देख के मैं सीखते रहता हूँ। मुझे वो पसंद है कि अगर नहीं समझे तो उसको पकड़ के पकड़ के पूछेंगे, मुझे बता कि ये मेरा कंफ्यूजन है, मुझे इसको सॉर्ट आउट कर। मेरा वो चीज है। मैं बोलता हूँ, मैं पूछता, आई हैव द डेयर टू आस्क दैट क्वेश्चन, एंड आई डोंट अफ्रेड कि वो फ्री में बताएगा नहीं बताएगा, पेड लेगा क्या लेगा, पर वो कंफ्यूजन एक बार क्लियर। तो मेरे बहुत सारे लोगों ने, मुझे गुरु ने बताया कि संकेत, यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन चेंज योर प्रोस्पेक्टस, बट यू कैनॉट चेंज द वर्ल्ड अनटिल अनलेस दे वांट टू चेंज देमसेल्फ। वो सामने वाला खुद को नहीं करेक्ट है। चेंज करने को नहीं कर रहा है। देखो, आज मैंने बोला, आपने नहीं बुक किया, वो आपकी मर्जी है। तो आप भी खुद ही बोल रहे हो कि अगर मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया होता तो कितना बड़ा लॉस हुआ होता था। बराबर है सर, ऑनेस्टली यस। मेरे को तो लगता है शायद से अभी बड़ा झटका जो है, शायद से वो पेंडिंग है मार्केट का, आ सकता है, क्योंकि मुझे बहुत, हाँ, अच्छा, अभी 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 तो मुझे तो सेक्टर तो सभी अलाइंड हो रहे हैं बेरिश की तरफ। मतलब मेरा जो एक जो ये मीटर होता है ना, यहाँ पे ये देखो, शायद से ऐसे एक मीटर होता है, ये देखो, ये जो मीटर है, ये स्ट्रॉन्ग सेल पे जा रहा है मेरा। तो सभी सेक्टर को मैं अलाइन करूंगा, ऐसा ये इंडिकेटर बनाऊंगा मैं पीछे, ये पूरा मुझे स्ट्रॉन्ग सेलिंग की तरफ झुका रहा है। मतलब मैंने वही बोला ना, 10-15 सेक्टर है, उसमें से 3 सेक्टर सिर्फ लीड कर रहे हैं, बाकी तो सेक्टर मुझे नीचे की तरफ ही झुका रहे हैं ना। जो मेरी ही जी सुई आहे, माझी ही जी सुई आहे, ती सेलिंगच्या साईडला झुकवतीये ना मला सगळं. बरोबर है सर। मग मला मार्केटच्या अगेन्स्ट जाऊन काम काय करायचंय? गॉट इट सर। तो वही है बाकी। एकदम सही बोला। हाँ, वही है। अभी गोल्ड सिल्वर में भी इतना भी बोल रहा था कि अरे बाबा मत घुसो गोल्ड में, मत घुसो गोल्ड में, फंस जाओगे, फंस जाओगे। क्या हुआ? गोल्ड में फंसे, सिल्वर में फंसे, कुछ नहीं हो रहा अभी। देखो क्या हो रहा हाँ, उधर ही लटका पड़ा है सर, आगे पीछे हो रहा है। है। इट इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ गुड डाइवर्जन। मतलब डेली में तो वो उधर ही है, मतलब वो वही जोन में लटका पड़ा है। हाँ, अभी सिल्वर भी देखते हैं हम, सिल्वर को भी दिखा देता हूँ आपको मैं।
वेयर इज द सिल्वर? अभी था नहीं इसमें। मतलब इट हैज करेक्टेड ऑलमोस्ट सिल्वर तो 50% हो चुका है, और मैं कब से बोल रहा हूँ, 20 जनवरी से मैं चिल्ला चिल्ला के, हाँ मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि अरे निकल जाओ, ये ना भी ट्रैप करेगा सबको। हाँ, जिस टाइम पे घुसना था तो ये लेवल्स पे मैं घुसा रहा था सबको। नहीं सॉरी, नॉट दिस एरिया, दिस एरिया। ये नवंबर अक्टूबर के आसपास मैं बोल रहा था राइट कि ऐसे चला जाएगा थोड़ा सा। मुझे कौस्तुभ सर ने भी बोला कि संकेत अरे मत मत यार, बहुत ऑलरेडी रैली हो चुका है। तो ये बोला अरे अभी रैली नहीं, अभी तो उसका रैली बाकी है, अभी तो देखेगा मजा। तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया था। तो कौस्तुभ सर ने थोड़ा उनके क्लाइंट्स को रोक दिया था, मैंने नहीं रोका था। और जिन्होंने मेरे साथ काम किया फिजिकल में ट्रेड लेके, दे मेड देयर मनी, राइट। दे मेड देयर मनी। मतलब वो फिजिकल में हम बाय कर रहे थे, वी आर बाइंग इन फिजिकल। तो 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 50 किलो चांदी हम बाई कर रहे थे फिजिकल में। तो वो चांदी हम बाई कर रहे थे, हम निकल गए थे। मेरे मेरे दिमाग में एक लेवल था कि इसके नीचे मुझे नहीं रुकना है। और मैंने आपको बोला ना उस दिन कि ऐसा एक टेस्टिमनी हुआ है। आई शो दैट टेस्टिमनी व्हाट इज हैपन। वो लोनावाला के सेशन में वो टेस्टिमनी मैं दे दूंगा सबको, क्या हुआ, हाउ डिड वी गेट सेव्ड एंड व्हाई डिड वी गॉट सेव्ड, मैं क्यों अहेड रहता हूँ। तो ये जब मार्केट साइकोलॉजी जब समझा, ये चार्ट समझने लगा, अंडरस्टैंडिंग आने लगा, आई डोंट हैव अ फियर राइट नाउ। जिस दिन आपको क्लैरिटी है, आपको उस दिन फेयर नहीं होना चाहिए मार्केट। एज सिंपल एज दैट। करेक्ट। तो वही है, अभी मैंने वही बोला ना कि आज मैंने जो सेशन में भी यही बोला कि देखो आज अभी मुझे क्लोजिंग में ये थोड़ा चीज दिखाई दे रहा है, बट कल ओपनिंग के बाद 1 घंटे के बाद सीनियर थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। चलो मैं मान लेता हूँ कि 400 पॉइंट गैप अप हो जाएगा, पर वो गैप अप की वजह से मुझे शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है या ये ट्रैपिंग कर रहा है, ये भी मुझे समझ में आएगा। तो वो भी मैं सोचूंगा अभी। मैं ना सर, मैं ब्लाइंड बैठता हूँ मार्केट को। आई डोंट हैव एनीथिंग इन माय माइंड व्हाइल सिटिंग टू द मार्केट। मैं पूरा ब्लाइंड मतलब माइंड आप से ये बैठता हूँ। सोच के नहीं आते कि ऐसा होगा वैसा होगा, यू जस्ट वेट फॉर द हाँ, अपॉर्चुनिटी। यस यस तो अगर यस, एज सेशन दिया सिंपल। एंटर करेंगे, नहीं तो छोड़ बस, देंगे, नहीं तो राइट छोड़ ना? देंगे। तो यस यस यस। और वही सेम डाउन तो मैं मैसेज डाउन नोट मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रहा हूँ। वही तो गाइडेंस भी दे रहा हूँ सबको, सिखा रहा हूँ। देखो ना, मैंने एक लेवल दिया था कि निफ्टी एक रेंज में स्टक है, मैंने कब से वो लेवल डाल के रखा था। 3 फेब से मैंने वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, 25,100 का ये रेंज बना के चुका है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। और क्या कर रहे हैं लोग, बुरी बेरिश इंगल्फिंग शॉर्ट, बुलिश इंगल्फिंग लॉन्ग। क्या हुआ बुलिश और बेरिश का, अच्छा डालोगे उसका, सब फेल हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी अभी मुझे बताओ सर, ये कौन सा पैटर्न था यहाँ पे? सॉरी, कौन सा? एक मिनट, ये सॉरी फ्यूचर है, मैं इसमें दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये कौन सा पैटर्न था, ये 2 कैंडल्स दिख रहा है आपको? यहाँ ये रेड एंड ग्रीन, हाँ, कौन सा नीचे पैटर्न वाला। है? हाँ, ये अच्छा, जो आपने अभी टच किया कर्सर से, छोटा रेड दिस वन। कैंडल, बड़ा हाँ, ग्रीन कैंडल, ये यस यस, ये या बुलिश एंगल्फिंग। हाँ, बरा चलो, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, 2 दिन हो गया। तो ये क्या अभी बेरिश एंगल्फिंग लेके तीनों तीनों कैंडल का एक ही दिन में खा लिया उसने तो। तो वही तो मैं कंफ्यूज, हाँ एग्जैक्टली सर। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। बॉस, दिस इज द थिंग दैट कि ये कब चलेगा और कब नहीं चलेगा ना, इसके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक समझने को लोग समझ में नहीं, उनको सिर्फ पैसा बनाना है। सुबह उठना है, मार्केट खुला, मार्केट ऊपर कॉल, मार्केट नीचे पुट, और मार्केट ने घुमा दिया सबको, फिर हो गया खत्म, टाटा फिश। सर अब आई थिंक अकॉर्डिंग टू योर विजडम, मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टेक हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड ना, महीने में 4-5 ऐसे ट्रेड लो ना कि सब सही बरोबर इंट्राडे में या बीटीएस में निकल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मतलब ट्रेड को ना, नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है, ही ट्राइज टू एनफोर्स द ट्रेड, मतलब कैसे भी ट्रेड हो जाए, बट आई डोंट थिंक वो करना चाहिए। आई मीन दैट इज व्हाई मोस्ट पीपल लूज तो मनी। मैंने कितना हम मैंने हम जो इफ यू कैन ट्रेड ना, इट्स अमेजिंग। हाँ, तुम्ही किती ट्रेड बघितलेत माझे असे? नाही ना, खूप कमी, म्हणजे एका महिन्यामध्ये 5-6 मॅक्सिमम, उसके ऊपर नहीं। तो मैं उतना ही तो दे रहा हूँ ना सर। एंड ऑल गुड ट्रेड्स, लाइक रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेड्स। तो वही तो मैं डाल रहा हूँ सर, आपने देखा नहीं है क्या? परफेक्ट। मैं आपको आई एम विथ यू ना, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, हाँ, आई नहीं एम नहीं नहीं, सेकंडिंग योर थॉट, मैं आई यस एम यस यस एग्रीइंग यस विथ यू, दैट्स व्हाट आई एम यस यस। सेइंग। सो देखो, मैं एक ही मैंने चीज मार्केट से सीखी है।
जिस दिन मुझे, जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे टीवीएस मोटर मैंने आपको बोला कि मुझे 3750 के नीचे एक्टिवेट होना है, उससे पहले मैं एक्टिवेट ही नहीं होऊंगा पुट के लिए। मेरे को मालूम है कब एक्टिवेट होना है कब नहीं होना है, तो व्हाई शुड आई थिंक अबाउट द मार्केट देन? इफ इट इज ट्राइंग टू गिव मी दैट इंडिकेशन, आई ट्राई टू गो. इफ इट इज नॉट, आई जस्ट वेट. मला घाई नाहीये मार्केट बरोबर. ज्यांना घाई असती ना पैसे डबल करायचे, ते एकच इथं लॉस करून जाणार आहे, ते इथं मोठे डोनर्स आहेत. और आपको ये भी केस स्टडी चेक करना है ना सर, जो मैंने 100 करोड़ वाले का बोला है, आप गूगल पे या किधर पे जाके चेक करो, थर्ड पेज पे 150 100 करोड़ का किसका बड़ा लॉस होगा, आपको उसका नाम भी पता चलेगा. यू कैन गूगल इट बाप रे। डाउन, तो आपको समझ में आएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ. सी, आई डोंट वांट टू लाई. मुझे एक ही पता है कि कभी हुआ, कभी हुआ ये? थर्ड फेब ये अपना डोनाल्ड ट्रम्प के ये टेरिफ पे. दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन है, होटल ओके। ओनर है. ही लॉस्ट 150 करोड़. मैं ढूंढ रहा हूँ। बाबा। आया क्या सामने सर? तो नाम मैं ढूंढ रहा हूँ। शायद से नहीं मिलेगा सर, नाम हटा दिया है अभी उन्होंने. बट ही इज अ 5 स्टार ओनर इन दिल्ली. ही हैज मल्टीपल बिजनेसेस. हम्म, बाबा। नो, आई अंडरस्टूड। और जैसे मैं आपको सभी को एक एक महीने से बता रहा हूँ, अरे ये महीना शायद से थोड़ा गड़बड़ी वाला है. कि मुझे बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते थे, सर आज क्या है क्या नहीं, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है क्या नहीं. बोला भाई जिस दिन मिलेगा उस दिन तो डालूंगा मैं ग्रुप पे, हैमर तो कर रहा हूँ मैं. यू नीड टू बी एक्टिव एट दिस थिंग, एट दिस लेवल. बरोबर है, बरोबर। क्या हुआ, क्या मिला उसका? नहीं, नाम नहीं मिला उसका, निकाल दिया नाम। नाम निकाल देंगे ना सर उसके, वो बट दिल्ली बेस्ड होटल ओनर, 5 स्टार होटल ओनर, 2,500 करोड़ का मालिक है, उसने 150 करोड़ कमा गवा दिया ऐसा। अभी अभी झूठ तो केस नहीं है ना. नहीं, दिस इज स्ट्रेंज, स्ट्रेंज इन द सेंस, बाबा। people are foolish, they just don't even ask. हम्म. नहीं सर, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस दैट इज टेकिंग दिस थिंग. Right, बराबर। बाकी कुछ नहीं है सर, और कुछ है आपको पूछना है? आपको क्या आपके हो चुके डाउट्स? नहीं सर, आई थिंक आई एम गुड सर, आई एम गुड, आई एम गुड सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। यस यस, तो वही मैं सबको समझाने की कोशिश कर ये रहा आप रिकॉर्डिंग देंगे ना सर? हूँ. यू विल गिव दिस रिकॉर्डिंग ना? शाम को हाँ. ना, आई गो टू दिस रिकॉर्डिंग वंस अगेन यस फॉर यस यस, माय आई एम गोइंग टू शेयर दिस रिकॉर्डिंग, डोंट वरी अबाउट प्रॉपर। इट. मुझे सिर्फ अपने ईमेल आईडी शेयर कर देना, आई विल जस्ट पुट इट डाउन दैट रिकॉर्डिंग ऑन योर ईमेल, सो विल नॉट लूज इट. श्योर सर। रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी, इट्स रिकॉर्डिंग. सो दिस इज द थिंग दैट आई ओके वांट सर। टू टेल यू. तो ओवरऑल, और वही बोला ना मैं, आने वाले समय में थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग का ही माहौल है, देखते हैं कि क्या है कैसा है. ओवरऑल ट्रेंड तो वीक ही है, मतलब निफ्टी तो नहीं जाएगा. 99% उसको जाना ही नहीं, तो वो नीचे ही डुबकी लगा रहा है. बट मेजर फॉल तो मैं आपको बोलता हूँ, ये 24,500 की इसके नीचे अगर गया ना एक बार, टाटा बाय बाय खत्म. हाँ सीधा सर, वन स्ट्रोक ये सीधा तोड़ देगा सबको. मतलब निफ्टी कोमा में चले जाए। वो सभी को कॉमा में भेजने वाला है, और ये डोनाल्ड ट्रम्प करके रहेगा सर शायद से. अभी सर मेरे को और एक चीज, तो मार्केट में। हाँ, उसमें और एक चीज है. अभी मैं वही तो बोल रहा था, साइडवेज सिनेरियो में क्या होता है कि बेसिकली जब मार्केट ऊपर नीचे होता है ना, तो ये कंटिन्यूशन नहीं देता, तो वो लोग राइट सर। समझते नहीं. तो यही तुम्हें सेशन में बता रहा. अभी अभी क्या बोलना अभी, वो कभी कभी वो बोलते हैं सब जन कि ये फ्री में नहीं दोगे तो भी चलेगा सर, जब जिस दिन उसको खुद फंसेगा ना, तब जाके समझ में आएगा. इसलिए तो वो मैं या कंटिन्यूअसली हैमर करते रहता हूँ कि यार प्रॉफिट है तो बुक करो, डोंट वेट, आइडली वेट मत करो.
क्योंकि वो आपके लिए रुकने वाला नहीं है प्रॉफिट। बराबर, एब्सोल्युटली सर। बाकी कुछ नहीं, तो वही है। तो हाँ, बेसिकली लोनावाला के लिए मैं एनकरेज कर रहा हूँ सभी को। आई एम नॉट डूइंग, बट यस देखो जिस दिन आप yes, yes. I will tell my 3 friends if they हाँ, can join. I'll tell surely See, tell them. In fact, that they should join. दिस इज आई ओपनर एज वेल एज, जैसे अभी आपका एजीएक्स के बारे में आपका आई ओपनर हो रहा है, उसमें उसमें भी आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप Yes, थोड़ा ऑब्जर्व करो। मैं आपको और एक उसमें से सीक्रेट बता दूंगा कि उसका सीक्रेट क्या है। no इजी है, problem, sir. सामने दिखेगा मैं उनको आपको। लेके आता हूँ। हाँ, आपको वो एजेक्स का भी ना और एक सीक्रेट है, मैंने आपको सिर्फ उसका 5% 10% बताया, आई हैव नॉट टेल यू द 80%। और जिस दिन आप वो देखोगे ना, आप भी शॉक हो जाएगा, यार संजय ये कितना मैनिपुलेशन करते हैं यार, फिर ये कैसा होता है, ये इसको कैसे रोकना है। आई हैव दैट सोल्यूशन ऑल्सो। सी, बट व्हाट इज हैपनिंग कि No मैंने problem, sir. वही बोला कि उसका देखने का नजरिया दिखता इजी है सर, पर वो माइंड एंड एक्सेप्ट नहीं करता। ये दिस इज ऑल अगेन, आई एम कमिंग बैक टू द सेम स्क्वायर, टू द माइंड एंड साइकोलॉजी अगेन। तो ये एक बार स्ट्रांग हो गया ना सर, ट्रेडिंग ऑटोमेटिक सिंप्लिसिटी हो जाता है। एंड मैंने और एक चीज मैंने देखा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग लैक करते हैं, दे आर लैगिंग इन एग्जीक्यूशन। मतलब एग्जीक्यूशन कैसा है, बाय सेल में वो लैक करते हैं। They don't even know Correct. how to place the target order, stop loss order, entry point, entry order। तो ये बेसिक बेसिक चीज भी वो भी उस दिन मैं कवर करने वाला हूँ कि इसके वजह से आपको नुकसान हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। और अभी अभी तो आपको आरएसए देख देख के आपको भी समझ में आ रहा है कि आरएसए में क्या है। आई एम जस्ट यूजिंग दिस सिंपल इंडिकेटर। मैं मैकडी मैंने यूज किया है, स्टॉकेस्टिक मैंने यूज किया है, 14-16 ईयर्स मैंने इसमें डाल दिए थे। तो मुझे एक ही सिंपल टूल चाहिए था, मैंने बहुत सारा खिचड़ी भी करके रखा था। जिस दिन मुझे एक कंसेप्ट मतलब बोलते हैं ना तपस्या करके वो मिल गया आपको, तो उसके बाद आपको देखने की जरूरत में सीधा मैं अभी वो इंडिकेटर भी निकाल दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि आरएसए भी क्या कर रहा है, कौन से पॉइंट पे होगा और प्राइस भी कौन से पॉइंट पे होगा। Right. वही है, बट ओवरऑल आपने आपने मनोरमा भी बोला अच्छा स्टॉक है, बट फिलहाल तो उसका डाउन ट्रेंडिंग चैनल शुरू हो चुका है। अभी तो नहीं, उसमें रोकना पड़ेगा बिकॉज एक सिंपल सी चीज है। बड़े प्लेयर्स को बड़े प्लेयर्स मतलब सिंपल सिंपल एफआईस को ये लेवल पे माल खरीदना नहीं है। ये डीआईएस के चक्कर में मार्केट ऊपर आया है, बट एफआईएस हैज मिस दिस रैली ना, दे विल टेक द मार्केट टू द डाउन साइड अगेन। वो नीचे की तरफ वापस से बाइंग करके ऊपर लेके आएंगे। ये तो सिंपल सिंपल क्लियर दिख रहा है। Got it, sir. वही है। Yeah. Correct. So this was the thing that I want to share, and thank you for the all and those who are not there present today for the meeting and their questions. Maybe we can you may join again the next session. So if नहीं ये अच्छी एक अच्छी बात है कि जो भी है रिकॉर्डिंग करके आपको बाद में मिल जाएगा कि क्या बात हुआ या किसका। अभी फॉर एग्जांपल जैसे संतोष सर है या सचिन पाटिल सर आए थे बीच में, और 2-3 लोग आए थे जो जे लेफ्ट अवे इन बिटवीन, बट उनके क्वेश्चंस मिल रहे हैं मुझे। सो वही मैं रिकॉर्ड करके उसको भेज दूंगा, यू कैन चेक इट आउट आफ्टर योर कन्वेंशन टाइम, सो यू विल नॉट मिस इट। जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटी आने वाला है आने वाले समय में, या आने वाले टाइम पे, so we need to that very active, very precious things to be taken over there. So thank you so much to everyone and have a great day ahead, have a great weekend and enjoy. We stay tuned for the next update in the group. Thank you so much. Thank you, sir. Have a good day. See you, sir. Bye. Yes,